یہ کیا ڈرامہ تھا جناب؟ فریحہ نے اسے دیکھتے ہی پوچھا۔ چلو رستے میں بتاتا ہوں۔ کہاں؟ بتایا نہیں تھا آج آپ نے ہمارے ساتھ ڈنر کرنا ہے؟ اچھا میں امی کو بتا دوں۔ ٹھیک ہے، میں ایک باہر کار میں تمہارا منتظر ہوں۔ وہ ان کے گھر سے نکل آیا۔ چند لمحوں بعد فریحہ بھی نکل آئی۔ فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اس نے پوچھا، اب بتاؤ؟ جواباً حماد نے اسے ساری تفصیل بتا دی۔ گویا اب میں مسکان صاحبہ کے لیے کام کروں گی۔ فریحہ دل پسند کام ملنے پر خوش تھی۔ اب تک وہ دانیال کی بے توجہی فراموش نہیں کر سکی تھی۔ ہاں، میں نے سوچا اگر تم سیٹھ زادی صاحبہ کے ساتھ نیکی کر رہی ہو تو اسے بھی تو پتا ہونا چاہیے کہ اسے کس نے اس جھنجھٹ سے نکالا ہے، اور اس بہانے تم میرے کزن بھی بن گئے ہو۔ بڑی حضرت ہو جی۔ اچھا، اسے تم نے یہ تاثر دینا ہے گویا ہم بچپن سے بہت فری رہے ہوں۔ وہ تو ہے، یوں بھی ہیں، فریحہ ناز سے بولی، اور کوئی ایسی بے وقوفانہ بات منہ سے نہیں نکال دینا جس سے اسے شک پڑ جائے، اور ایک بار اپنے فرضی محبوب سے بھی بات کر لینا۔ اس مقصد کے لیے الارم لگا لو، یا پھر میں تمہیں مس کال دے دوں گا تاکہ جب تم کال اٹینڈ کرو تو اسے کوئی شک نہ ہو۔ حماد اسے باریکی سے سمجھانے لگا۔ کوٹھی تک ان کی یہی گفتگو جاری رہی۔ انہوں نے حت الوسع کوئی پہلو تشنا نہیں چھوڑا تھا۔ گیٹ پر پہنچتے ہی وہ فریحہ کی پڑھائی کے بارے میں محو گفتگو ہو گئے۔ چوکیدار نے کار پہچانتے ہی گیٹ کھول دیا تھا۔ کار پورچ میں روک کر وہ فریحہ کے ساتھ اتر گیا۔ جانے کا وہ دن آئے گا جب ہم دونوں اس کوٹھی کے مالک ہوں گے، فریحہ خوابناک لہجے میں بولی۔ بہت جلد جان، حماد آہستہ سے بولا۔ مسکان نے ڈرائنگ روم کے دروازے پہ آ کے ان کا استقبال کیا۔ ہائے بھابھی! فریحہ نے اس کے گلے ملتے ہوئے اس کے گال کو چوم لیا۔ حماد یہ تو؟ مسکان نے حیرانی سے حماد کی طرف دیکھا۔ جی محترمہ، بتایا تو تھا سرپرائز ہے۔ یہ وہی فریحہ ہے، آپ کی یونیورسٹی فیلو، جس کی وجہ سے روزانہ 4-5 لڑکے وائس چانسلر کے آفس کے سامنے کھڑے ہوتے تھے۔ حماد کی بات پر دونوں کہکا لگا کر ہنس پڑی تھیں۔ یہ آپ کی کزن ہے؟ یونیورسٹی میں تو کبھی آپ اکٹھے نظر نہیں آئے۔ حماد مسمی صورت بنا کر بولا، کیونکہ مجھ سے وائس چانسلر صاحب کے آفس کے سامنے کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا۔ اس مرتبہ دونوں نے پہلے سے بھی زوردار کہکا بلند کیا۔ فریحہ نے کہا، نہیں بھابھی، اصل میں محترم اس وقت مجھ سے خفا تھے، انہیں صرف جھنڈی جو دکھا دی تھی۔ بکواس بند کرو، میں تم جیسی کو گھاس بھی نہیں ڈالتا۔ اگر شک ہے تو میری بیگم کو دیکھ لو۔ اس وقت تک تو تمہیں بھابھی نہیں ملی تھی؟ جی نہیں، تمہاری یونیورسٹی آمد سے پہلے میں نے انہیں پھانس لیا تھا، حماد بے شرمی سے بولا، اور مسکان کے چہرے پر حیا آلود مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس وقت حماد کو وہ فریحہ سے کئی گنا زیادہ خوبصورت نظر آئی۔ اس نے سوچا، سچ کہتے ہیں حیا عورت کا زیور ہے۔ ان کے صوفوں پر بیٹھتے ہی ملازمہ نے کولڈ ڈرنک پیش کی۔ اچھا اب کام بتاؤ۔ فریحہ حماد کی طرف متوجہ ہوئی۔ نہیں، پہلے تمہارے دوزخ کو بھر دوں پھر بتاؤں گا تاکہ تم انکار نہ کر سکو۔ اتنی پیاری بھابھی کے کام سے انکار کر سکتی ہوں؟ فریحہ چاپلوسی سے بولی۔ جواباً حماد نے فرضی کہانی اسے سنا دی۔ بس میں نے سوچا کوئی بہت مشکل کام ہے، تم شاپنگ کے لیے ایک رقم اکٹھی کر لو، 2 دنوں کے اندر اندر طلاق نامہ مل جائے گا جناب کو، اور مجھے اس کالو کا موبائل نمبر بھی دے دو۔ حماد اسے دانیال کا نمبر نوٹ کرانے لگا۔ مسکان کو فریحہ کا انداز پسند نہیں آیا تھا۔ دانیال کا ذکر اس سے بہت گھٹیا انداز میں کیا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر مسکان کو امید ہو گئی تھی کہ وہ آسانی سے دانیال کو طلاق دینے پر راضی کر لے گی۔ اس کی خوبصورتی کسی شک و شبے سے بالا تر تھی۔ مسکان عورت ہو کر بھی اس کے بے پناہ حسن سے متاثر ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اسے حماد پر بھی بہت زیادہ پیار آیا، جو ایسی کزن کو چھوڑ کر اس کی جانب مائل ہوا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، اور محبت کیا ہوتی ہے؟ ضروری تو نہیں کہ دانیال کی طرح ہر وقت محبت الاپی جائے۔ مجھے صرف مشی چاہیے، اگر جو جنت سے حور بھی لا کر دو تو قبول نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ اس کے دماغ میں دانیال کے الفاظ گونجے اور اس کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ دانیال صاحب، اب سچ مچ کی حور ہی تمہیں مل رہی ہے، میرا خیال ہے کھانا لگ گیا ہے۔ حماد کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ ہاں ہاں چلو۔ اس نے اٹھ کر فریحہ کا ہاتھ تھاما اور اسے ڈائننگ ٹیبل پر لے آئی۔ کشادہ ٹیبل درجنوں لوازمات سے سجی ہوئی تھی۔ بہت ہے کہ اور منگوا لوں؟ کرسی سنبھالتے ہی حماد نے طنزیہ لہجے میں فریحہ سے پوچھا۔ میں اپنی بھابھی کے گھر آئی ہوں، تمہیں خوشامد کرنے کی ضرورت نہیں، فریحہ ترکی بترکی بولی۔ ان کی نوک جھونک نے مسکان کو مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ ویسے آپ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور کزن بھی تھے، رشتہ نہ ہونے کی وجہ میری سمجھ میں نہیں آئی۔ بھابھی کیا بتاؤں؟ درجنوں لڑکیاں تو محترم سے شادی کی خواہش مند تھیں، اور یہ راجہ اندر بنے پھرتے، کسی کو لفٹ نہیں کراتے تھے۔ مجھے ایک ہینڈسم قسم کے ڈاکٹر نے پرپوز کیا تو میں نے سوچنے میں وقت ضائع نہ کیا۔ اس وقت میں فرسٹ ایئر میں تھی اور جناب یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے۔ میرے اس فیصلے پر انہیں کافی تب چڑھا اور کافی عرصہ مجھ سے کھچے رہے۔ میری یونیورسٹی آمد پر بھی اسی لیے مجھے لفٹ نہیں کرائی جاتی تھی، یہاں تک کہ آپ نے آ کر اس کے زخموں پر مرہم رکھا۔ بکواس، بالکل بکواس۔ حماد نے شدومت سے انکار میں سر ہلایا۔ تم سے محبت کرتی تھی، میری جوتی شکل دیکھی ہے اپنی؟ اگر مجھے محبت ہوتی تو میں دیکھتا کوئی تمہیں کیسے لے جاتا ہے، اور بھول گئی کیسے روزانہ تانگ جھانک کرنے آ جاتی تھی؟ جب میں نے گھاس نہیں ڈالی تو ڈاکٹر صاحب کو ڈھونڈ لیا۔ مگر آپ نے تو کہا تھا وہ انجینئر ہے۔ مسکان کو اس کی بات بھولی نہیں تھی۔ بیگم صاحبہ، میرے علم میں تو یہی تھا،
کہ محترمہ کی نسبت ایک انجینئر سے طے ہوئی ہے، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ڈاکٹر ہے، بلکہ کل پرسوں تک ڈاکٹر بزنس مین بھی ہو سکتا ہے، اور آخر میں پتہ چلے گا کہ یہ سب جھوٹی کہانیاں تھیں۔ تم نے مجھ سے پوچھا کب ہے کہ میری نسبت کس سے طے ہے؟ مجھے ضرورت ہی کیا کب تھی؟ تو پھر بکواس کا مطلب؟ فریحہ نے آنکھیں نکالی۔ ارے بھائی آپ تو لڑنے لگے، پلیز کھانا کھائیں، مسکان جلدی سے بیچ میں بولی۔ بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں، حماد نے منہ بنایا، انجینئر کی انکم ڈاکٹر سے کم تو نہیں ہوتی؟ اب سن لی اس کی احمقانہ بات۔ فریحہ مسکان کی طرف متوجہ ہوئی، بات ایسے کر رہا ہے جیسے اس کے انجینئر کہنے سے ڈاکٹر انجینئر بن جائے گا۔ مسکان ہنس کر خاموش ہو گئی تھی۔ اسی وقت فریحہ کے موبائل فون کی گھنٹی بجی، موبائل نکال کر دیکھنے پر اس کا چہرہ بے ساختہ کھل اٹھا تھا۔ کال اٹینڈ کرتے ہوئے وہ بولی، ہیلو سویٹ ہارٹ، میں اس وقت بھابھی کے گھر آئی ہوں ڈنر کرنے۔ جی جی، حماد صاحب بھی ساتھ ہے؟ نہیں، اس کنجوس سے کب دعوت دینا تھی، بھابھی نے بلایا تھا۔ سچ قسم سے؟ ٹھیک ہے، میں اور حماد آپ کو لینے آئیں گے ایئرپورٹ پر۔ فون بند کر کے وہ حماد سے بولی، محترم آپ کے جیجا جی ہفتے کو آ رہے ہیں، انہیں ایئرپورٹ پر ریسیو کرنے جانا ہے۔ میں اس کا نوکر نہیں ہوں، حماد نے منہ بنایا۔ ٹھیک ہے تم نہ آنا، میں بھابھی کو ساتھ لے جاؤں گی۔ بھابھی کو ساتھ لے کے جاؤں گی، وہ فارغ بیٹھی ہے نا، حماد نے اسے چڑھایا۔ ڈاکٹر صاحب کہاں پر ہوتے ہیں؟ مسکان ان کی بحث میں مخل ہوئی۔ لندن میں، ای این ٹی میں اسپیشلائز کر رہے ہیں۔ تھراٹ کا اسپیشلسٹ تو تب مانوں گا جب تمہاری بولتی بند کرے گا۔ مغز کھا جاتی ہو آدمی کا، حماد نے اس پر چوٹ کی۔ گلا بند کرے گا تمہارا؟ میری آواز تو اسے کوئل کی بولی سے بھی زیادہ پسند ہے، روزانہ مجھ سے لوری سن کر سوتا ہے۔ فریحہ کہاں ہار ماننے والی تھی۔ میرا خیال ہے قہوہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر پیتے ہیں، مسکان نے مشورہ دیا، جسے بغیر کسی تردد کے دونوں نے مان لیا۔ اب خصوصی قہوہ پینے کے بعد فریحہ حماد سے مخاطب ہوئی، اب اگر مہربانی فرما کر مجھے گھر چھوڑائیں تو تمہارا احسان ہوگا۔ بیٹھو نا، مسکان نے اسے رکنے کی دعوت دی، تھوڑی دیر بعد چلی جانا۔ نہیں بھابھی، فریحہ نے انکار میں سر ہلایا، کافی دیر ہو گئی ہے، یہ نہ ہو پاپا کے ہاتھوں بےعزتی ہو جائے۔ تو کیا؟ حماد چوٹ مارنے سے باز نہ آیا، پہلی دفعہ تو نہیں ہوگی کہ گھبرا رہی ہو، یوں بھی دن میں 3 وقت تو ہوتی ہے، صبح دوپہر اور شام، آج لیٹ نائٹ بھی صحیح۔ تمہاری بےعزتی کا تو کوئی وقت بھی مقرر نہیں تھا، انکل کو جب کوئی کام نہ ہوتا وہ تمہاری بےعزتی کرنے لگتے۔ اچھا اب اپنی لڑائی بند کرو۔ مسکان نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روکا اور پھر ملازمہ کو آواز دی، شہناز جی بیگم صاحبہ۔ وہ دروازے پر نمودار ہوئی، میری سنگھار میں اس پر ایک ڈبہ رکھا ہے، وہ لے آ۔ جی بیگم صاحبہ۔ شہناز سر ہلاتے ہوئے اس کی خوابگاہ کی طرف بڑھ گئی اور پھر ایک مخملی ڈبے کے ساتھ لوٹی۔ مسکان نے مخملی ڈبہ کھول کر فریحہ کے سامنے پکڑا، ایک قیمتی اور خوبصورت ہار جگمگا رہا تھا۔ یہ میری طرف سے قبول کر لو۔ بھابھی یہ تو، فریحہ سچ مچ گنگ رہ گئی تھی، اتنا قیمتی ہار اس نے خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ بھابھی بھی کہتی ہے اور تکلف بھی کرتی ہے، پیار سے کہتے ہوئے مسکان نے وہ ڈبہ اسے پکڑا دیا۔ اپنے ہاتھوں سے پہنا بھی دو نا، حماد بھی اتنا قیمتی تحفہ دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ یہ لیں جی، مسکان نے وہ ہار فریحہ کے سراہی دار گردن میں پہنا دیا۔ تھینکس بھابھی، فریحہ ممنونیت سے بولی۔ حماد نے کہا، اچھا اب چلو، پھر شور کرو گی کہ لیٹ ہو گئی ہوں۔ فریحہ نے مسکان سے الوداعی معانقہ کیا، اسے گال پر بوسہ دیا اور ایک بار پھر اس کا شکریہ ادا کر کے حماد کے ساتھ باہر نکل آئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کوٹھی سے باہر تھے۔ حماد، مسکان واقعی بہت اچھی، مخلص اور پیاری لڑکی ہے۔ ہاں تمہیں ایک ہار کیا دے دیا، بری سے اچھی ہو گئی۔ نہیں سچ کہہ رہی ہوں، قسم سے اگر وہ مجھ سے خوبصورت نہیں تو کچھ کم بھی نہیں ہے، خاص کر اس کی حیا آلود ہنسی تو جانے دیکھنے والوں پر کیا قیامت ڈھاتی ہوگی۔ دیکھنے والے نہیں، والیاں کہو، مردوں کے سامنے وہ آتی ہی کب ہے۔ اچھا کوئی ایسا طریقہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اسے دولت تو بٹور لیں لیکن قتل نہ کریں؟ ہاں ہے، اسے دانیال صاحب کی کٹیا میں رخصت کر دیتے ہیں اور خود اس کوٹھی میں آ جاتے ہیں، بے وقوف، کبھی سوچ کر بات نہ کرنا۔ وہ بھناتے ہوئے بولی، اچھا اچھا جو مرضی آئے کرو، تم تو شاید دولت کے لیے مجھے بھی چھوڑ دو۔ بکواس بند کرو، حماد نے اسے لتاڑا۔ تم بھی منہ بند رکھو۔ فریحہ کب چپ رہنے والی تھی۔ فری، اگر ایسا ممکن ہوتا تو کیا میں خواہ کسی کی جان لیتا؟ اور یاد رکھو، اگر اخلاقی قدروں کے پیچھے پڑے رہے تو کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا، ساری محنت اکارت چلے جائے گی۔ حماد، وہ بہت سادہ ہے، اتنی کہ اب کیا بتاؤں، تو نے دیکھا ہماری گپ شپ کے دوران کیسے خفیف سی ہو جاتی تھی۔ حماد نے منہ بنایا، میں اسے پچھلے 3 سال سے دیکھ رہا ہوں، تم نے آج دیکھا ہے؟ اچھا جو مرضی آؤ کرو جناب، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فریحہ نے حتمی فیصلہ سنایا کہ اس کا گھر قریب آ گیا تھا۔ تم اپنا کام 1-2 دن میں ختم کرنے کی کوشش کرو، فریحہ مغرور ہوتے ہوئے بولی۔ وہ تو سمجھو ہو گیا، 2 دن سے زیادہ لگے تو جو سزا سناؤ گے مجھے منظور ہوگی۔ 2 دن کا عرصہ تمہارے لیے کافی زیادہ ہے، بہرحال اس سے زیادہ وقت نہیں لگنا چاہیے، اور خیال رکھنا اتنی سخت ڈوز بھی نہ دے دینا بیچارے کو کہ اپنی جان ہی لے لے۔ جواباً فریحہ مسکرا کر رہ گئی تھی، اسے گھر کے سامنے اتار کر وہ واپس مڑ گیا۔ ان کے جاتے ہی مسکان نے اپنے کمرے میں آ کر سب سے پہلے نماز پڑھی، پھر بیڈ پر لیٹ گئی۔ کوئی بات اسے کھٹک رہی تھی، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر کیا بات اسے بے چین کیے ہوئے ہے۔
شاید دانیال کے ساتھ یہ سلوک اسے مناسب نہیں لگ رہا تھا کہ فریحہ اسے خطرناک حد تک خوبصورت لگی تھی، اور دانیال کی یہ بات اب تک اس کے ذہن میں تھی کہ ایک بدصورت سے آپ نباہ نہیں کر سکتی تو دوسری کیسے کرے گی؟ وہ بھی اپنی محبت میں مبتلا کر کے کسی چاہنے والے کے ساتھ بھاگ جائے گی اور پھر وہاں سے فون کر کے مجھے کسی تیسری لڑکی کے خواب دکھا کر طلاق لے گی۔ مسکان کو لگا اس کالے جادوگر کی پیش گوئی پوری ہونے والی ہے۔ میری بلا سے ہوتی رہے پوری۔ اس بےہودہ نے تو میری درخواست کو بھی درخور اتنا نہ سمجھا۔ اسے دانیال کا انکار بہت برا لگا تھا۔ اسی وقت حماد نے خوابگاہ میں جھانکتے ہوئے اپنی واپسی سے مطلع کیا۔ میڈم آئی ہیو کم بیک۔ اس نے مسکرا کر پوچھا، راستے میں جھگڑا تو نہیں کیا تھا؟ ایسا ہو سکتا ہے بھلا، کمینی تمہاری تعریفوں پر شروع ہو گئی تھی اور میں بھلا کب یہ برداشت کر سکتا ہوں؟ جیلس کہیں گے؟ مسکان کھلکھلا کر ہنس دی تھی۔ میرا خیال ہے آج میں یہیں سو جاتا ہوں، حماد رومانوی لہجے میں بولا۔ جی تھینکس۔ مسکان کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی، مگر بظاہر اس نے نارمل لہجے میں کہا۔ اسے یقین تھا کہ حماد نے اگر ذرا بھی اصرار کیا تو وہ ہتھیار ڈال دے گی، وہ اول آخر اس کا شوہر ہی تو تھا۔ اور پھر ان دنوں کالے جادوگر کے سحر انگیز لمس کے لیے اس کا بدن بغاوت پر آمادہ تھا اور وہ اسے بھلانا چاہتی تھی۔ بڑی ظالم ہو، وہ مایوس کن لہجے میں کہتے ہوئے باہر نکل گیا۔ اب تک اسے اپنی محبوبہ کے احساسات کی پہچان نہیں ہوئی۔ مسکان نے قدرے بیزاری سے سوچا، اسے یہ ناقدری بہت بری لگی تھی۔ اس نے اٹھ کر دروازہ اندر سے کنڈی کیا کہ کہیں وہ پلٹ نہ آئے، شاید اس کی واپسی پر وہ خود کو روک نہ پاتی۔ وہ عجیب متضاد خیالات کی شکار ہو رہی تھی، حماد کو قریب ہی نہیں آنے دے رہی تھی اور چاہتی تھی کہ وہ اس کے قریب آئے، دانیال سے طلاق لینا چاہتی تھی، اس کے لیے بھرپور تگ و دو بھی کر رہی تھی، مگر اس کے ساتھ یہ خواہش بھی رکھتی تھی کہ وہ اس کے علاوہ کسی کو اتنی چاہت نہ دے اور جو دعوے اس نے کیے ان پر پورا اترے۔ فریحہ کو دیکھنے کے بعد اسے یقین ہو چلا تھا کہ دانیال ہار جائے گا۔ ایسی لڑکی کو نظر انداز کرنا مشکل نہیں، ناممکن تھا۔ ایک بار اس کے جی میں آیا کہ دانیال کو کال کر کے فریحہ کے بارے میں بتا دے، مگر پھر خود کو ملامت کر کے وہ سونے لیٹ گئی۔ حسب معمول اسے دانیال سپنے میں ملا۔ پہلے وہ اسے شکوے کرتا رہا، پھر فریحہ کا پیار پا کر مسکان کی توہین پر بھی تیار ہو گیا۔ اس نے اسے خوب گالیاں بکیں، بے وفا، طوائف، چڑیل، ڈائن اور پتہ نہیں کیا کیا کہتا رہا۔ صبح کی نماز پڑھ کر وہ دوبارہ لیٹ گئی تھی۔ رات کو 2-3 بار جاگنے کی وجہ سے اسے طبیعت مزمحل سی لگ رہی تھی۔ ناشتہ کرنے کو بھی اس کا دل نہ چاہا۔ اس کی آنکھ موبائل فون کی گھنٹی سے کھلی۔ کسی نامعلوم نمبر سے کال آ رہی تھی۔ تکیے سے ٹیک لگا کر اسے کال ریسیو کی۔ یس باجی، اب مکرم خان بول رہا ہے۔ کون مکرم خان؟ اسے حیرانی ہوئی تھی۔ باجی، آپ کا دکاندار کا ملازم ہے نا، آپ کا نمبر دانیال صاحب نے دیا تھا، کہہ رہا تھا کہ اس نے نوکری چھوڑ دی ہے اور اب ہم خود بیگم صاحبہ سے پوچھ لیا کرے۔ اچھا ٹھیک ہے خان صاحب، آپ اطمینان سے اپنا کام کرتے رہیں، اگر ضرورت محسوس کرو تو اپنے ساتھ کوئی دوسرا ملازم بھی رکھ لو۔ مہربانی باجی۔ اور پیسوں کا کیا کرنا ہے؟ کون سے پیسے؟ مکرم خان کی بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ 1,70,000 روپے دانیال صاحب کے پاس تھا۔ اسے 6,000 روپے اپنا 3 ہفتوں کا مزدوری کاٹا اور باقی ام کو دے دیا کہ بیگم صاحبہ کو دے دینا، باقی خود ام نے جو 3 دن اکیلا کام کیا ہے اس کا بھی رقم پڑا ہے۔ اسے دانیال کی غیرت پر حیرت ہوئی ہے، ساتھ خیال آیا کہ 1,00,000 روپے جو اس نے پہلی سیلری کی مد میں دیا تھا وہ بھی اسے واپس کر دیا ہوگا۔ اچھا خان صاحب، یہ ساری رقم تم اپنے پاس رکھو، بعد میں بتا دوں گی کہ اس کا کیا کرنا ہے۔ باجی، ہمارا تنخواہ کا کیا ہوگا؟ مکرم خان نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ ہاں، ہم کو پتہ نہیں ہے باجی، دانیال صاحب نے بھی نہیں بتایا تھا، اب تک مہینہ پورا نہیں ہوا نا۔ مسکان نے ہنس کر پوچھا۔ اچھا، کتنی تنخواہ لینا چاہو گے؟ سادہ دل پٹھان بولا۔ کم از کم 12-13 ہزار تو ہونی چاہیے ہے نا باجی؟ نہیں، 12-13 نہیں، مسکان شرارت پر اتر آئی۔ 10,000 سے کم پر تو میں کام نہیں کر سکتا باجی۔ نہیں، 10 بھی نہیں۔ ٹھیک ہے باجی، اس مہینے جتنی چاہے دے دینا، ہم نے مقرر نہیں کیا تھا، اس کے بعد اگر 10 دینا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی اور بندہ ڈھونڈو۔ اس نے سوچا، کتنی مختصر سی خواہشیں ہیں۔ اسے دانیال یاد آیا جس سے 3 ہفتوں کے 6,000 روپے لیے تھے، گویا ایک ہفتے کے 2,000 اور مہینے کے 8,000۔ اچھا خان بھائی، 20,000 تنخواہ ٹھیک رہے گی؟ باجی، یہ تو کچھ زیادہ ہے۔ اچھا 22,000؟ باجی مذاق تو نہ کریں، مکرم خان جھیم گیا تھا۔ بڑے بھائی سے مذاق نہیں کیا جاتا خان جی، پر اتنا زیادہ رقم؟ اچھا خان جی، ایسا ہے کہ یہ دکان آپ تنہا چلاتے ہیں یا کوئی ملازم ساتھ رکھتے ہیں؟ آپ کو میں ماہانہ 25,000 دوں گی، اگر ملازم رکھو گے تو اسے اپنے 25,000 سے تنخواہ دو گے، باقی جو بچت تمہارے پاس ہے اس سے دکان کا سامان خرید لو اور اس کے بعد جو بچت ہو وہ اپنے پاس اکٹھی کرتے رہنا، اس کا مصرف میں تمہیں بعد میں بتا دوں گی۔ ٹھیک ہے باجی، وہ بھرپور خوشی سے بولا۔ اللہ پاک آپ کو بہت سارا خوشیاں دے۔ مسکان نے مسکراتے ہوئے کال منقطع کر دی اور فریش ہونے کے لیے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے دل ہی دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ دانیال سے طلاق لینے کے بعد یہ دکان اور مکان دوبارہ دانیال کے حوالے کر دے گی۔ اسے یقین تھا کہ فریحہ کا دیوانہ بننے کے بعد وہ اس کے آگے چور چرا نہیں کر سکے گا۔
हेलो, उसने अनजान नंबर से आने वाली कॉल अटेंड की। दानियाल साहब बात कर रहे हैं? मुतरन्नम ने निस्वानी आवाज़ सुनकर वो हैरान रह गया था। जी, जी, दानियाल ही बात कर रहा हूँ। दानियाल, मैं फरीहा बोल रही हूँ। याद है ना उस दिन हमाद के साथ होटल में आपसे मुलाकात हुई थी? जी मैडम, वो खुश शक्ल सी लड़की उसे कैसे भूल सकती थी? क्या इस वक्त इसी होटल में आ सकते हो? उसने दिलावेज लहजे में पूछा। खैर तो है? वो मुतरन्नम हंसी अनायत करते हुए बोली। डर लग रहा है मुझसे, इतनी बुरी शक्ल तो नहीं है मेरी। उसकी शक्ल दानियाल के हादसे से मिटी नहीं थी। वो बेसाख्ता बोला, आप तो लाखों करोड़ों में एक हैं। अच्छा आए ना, आपसे एक ज़रूरी बात करना है। ठीक है मैडम, मैं थोड़ी देर में पहुंच जाता हूँ। क्या फरी या फरीहा नहीं कहा जा सकता? वो मस्नुई नाराज़ी से बोली। मैं आप वो गड़बड़ा गया। उस दिन तो उसने दानियाल की काफ़ी तौहीन की थी, मगर आज फ़ोन पर उसका लहजा शहर में डूबा हुआ लग रहा था। फरीहा ने उसकी मुश्किल आसान करते हुए कहा, अच्छा यहाँ आओ फिर बात करते हैं। जी अच्छा, कहकर उसने राब्ता मुनक़ता कर दिया। वो 3 दिनों के मैले कपड़े पहने हुए था। मुस्कान के जाने के बाद वो नहा भी नहीं सका था, बस 5 वक़्त वज़ू कर लेता। एक गैर औरत के पास जाते उसे झिझक महसूस हुई कि इसी तरह मैले कुचैले हुलिये में चला जाए। वो गुस्लखाने में घुस गया। थोड़ी देर बाद वो मतलूबा होटल की तरफ जा रहा था। फरीहा उसे मुंतज़िर लगी। हल्के गुलाबी रंग के सूट में वो कयामत ढा रही थी। उसे देखते ही वो अपनी जगह पर खड़ी हो गई। थैंक्स दानी, आपने मुझे मायूस नहीं किया। उसने मुसाफे के लिए उसकी जानिब हाथ बढ़ाया। दानियाल हैरत से शुजर रह गया था। उसका बेतकल्लुफ़ाना रवैया, बेबाकाना अंदाज और आंखों से फूटती चाहत, सब कुछ उसके लिए अछूता और हैरत अंगेज था। उसने अपना खुरदरा हाथ उसके मुलायम हाथ में दे दिया, जिसे उसने बड़े मायने खेज अंदाज में दबाकर छोड़ दिया था। बैठे, उसे बैठने का कहकर वो खुद भी बड़े अंदाज में से बैठ गई। कहीं मेरी बेतकल्लुफ़ी बुरी तो नहीं लगी? दानियाल की खामोशी को देखकर उसने ऐसे मासूमाना अंदाज में पूछा कि दानियाल का दिल धड़कने लगा। बुरा तो नहीं लगा मैडम, अलबत्ता हैरानी ज़रूर हुई। भला वो क्यों? उसने शरारत से आंखें झपकीं, गोया उसने अपने तरकिश के सारे तीर चलाने का फैसला कर लिया था। क्योंकि पिछली बार आप थोड़ी तल्ख हो गई थीं और आपके अल्फाज अब तक मेरी यादाश्त में जिंदा हैं। फरीहा चेहरे पर निदामत भरे तासुरात उजागर करते हुए बोली, दानियाल साहब, मुझे अपनी ज़्यादती का एहसास है और आपको इसीलिए बुलाया है कि माफ़ी तलब कर सकूं। जाने उस दिन मुझे क्या हो गया था। कसम से आप मुझे ना तो बदसूरत लगे थे और ना और कमी देखी थी मैंने। बस आपकी तवज्जो की कमी मुझे ऐसा रवैया अपनाने पर मजबूर कर गई। तवज्जो की कमी? दानियाल की आंखों में छुपी हैरत गहरी हो गई थी। हाँ, तवज्जो में कमी। याद है आपने क्या कहा था? इस सेठज़ादी को मुझसे खूबसूरत बताया था और एक लड़की भला कब दूसरी लड़की से कमतर होना पसंद करती है। मैडम, शायद मुझसे गलती हो गई थी कि अपने दिल की बात ज़ुबान पर ले आया था, मगर बाखुदा ऐसा मैंने आपके बारे में आपकी तौहीन के लिए नहीं कहा था। असल वजह ये थी कि एक तो मैं ऐसी महफिल के आदाब से नावाकिफ़ हूँ कि कभी लड़कियों की मैयत में बैठने का मौका नहीं मिला। दूसरा, आप जानती हैं मैं हर किसी को अपनी चीज़ पसंद होती है और वो मेरी होने वाली दुल्हन थी। दुल्हन? फरीहा ने मुंह बनाया। पागल, वो फ़कत आपको इस्तेमाल कर रही थी। शायद आप सच कह रही हैं। मुस्कान के ज़िक्र पर उसे बाएं साइड की पसलियों के नीचे मीठा मीठा दर्द महसूस होने लगा। शायद नहीं, यकीनन कहो, उसे अपने प्यारे शोहर हमाद के पास लौटना था। फरीहा ने जहरीले लहजे में इंकशाफ किया। हमाद? दानियाल की आंखें हैरत की शिद्दत से फैलीं। जी हाँ, हमाद, वही हमाद जिसने आपको उस शादी के लिए तैयार किया था। मगर वो तो आपका मंगेतर। ये भी महज़ झूठ है, उसने मुझे भी धोखे में रखा। वो मुझसे भी शादी करना चाहता है कि मैं उसे खूबसूरत लगती हूँ और मुस्कान को भी छोड़ना नहीं चाहता कि वो सेठज़ादी है। मुझे पहले इल्म नहीं था कि मुस्कान उसकी बीवी है, जिसे वो एक दिन गुस्से में तलाक दे चुका है और अब दोबारा उससे शादी रचाना चाहता है। ये बात मुझे कल अपनी एक सहेली की ज़ुबानी मालूम हुई और मैं उस धोखेबाज पर थूक कर चली आई। दानियाल खामोश रहा था। खामोश क्यों हो गए? क्या मेरी बात पर एतबार नहीं है? आप सच कह रही हैं। कल यही बात मिशी ने मुझसे भी कही थी कि वो अपने पहले शौहर के पास वापस जाना चाहती है, लेकिन ये नहीं बताया था कि उसका पहला शौहर कौन है। तुम उस बेवफा को मिशी कहते थे? फरीहा आपसे तुम पर आ गई। दानियाल ने इस बात में सर हिला दिया। ऐसी औरतें प्यार के काबिल नहीं होती दानी, जो किसी के प्यार, मोहब्बत और वफा को दौलत के तराजू में तोले। उसे क्या पता मोहब्बत क्या है। ऐसी खुदगर्ज सिर्फ अपने भले की मुतलाशी होती हैं। मिशी के मुतल्लिक ऐसे रिमार्क सुनकर वो तड़प कर रह गया। मैडम प्लीज़ ऐसे ना कहें, उसे कुछ भी ना कहें। क्यों ना कहूँ? फरी बिफर गई। सेठज़ादी को इतना भी एहसास ना हुआ कि एक मासूम जवान पर क्या गुजरेगी। बस अपना उल्लू सीधा करके चलती बनी। मैडम, आपने मुझे क्यों बुलाया है? दानियाल ने मौजू बदली किया। उससे मुस्कान के खिलाफ बात बर्दाश्त नहीं हो सकती थी। मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? दानिया फरीहा ने अपनी बड़ी बड़ी शरबती आंखों से उसे घूरा। क्या मतलब? दानियाल हैरान रह गया।
دانی پتہ ہے ایک عورت کیا چاہتی ہے؟ کار، کوٹھی، بنگلہ؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ان آسائشوں سے وہ سکون حاصل نہیں کر سکتی۔ اسے تو بس ایک ایسا شوہر چاہیے جو اس کے ناز اٹھاتا رہے، اس کا وفادار رہے، اسے سر آنکھوں پر بٹھائے، اس کی ہر خواہش کو حکم سمجھے، اسے اتنا پیار دے کہ وہ خود کو بھول جائے، چاہے اس کی شکل و صورت کیسی ہی کیوں نہ ہو، دیکھنے میں وہ جیسا بھی لگتا ہو۔ بس یہی ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے۔ گو کچھ ناگبت اندیش اس بات کو سمجھ نہیں پاتے، اور جب ان کی آنکھیں کھلتی ہیں تو کچھ باقی نہیں بچا ہوتا۔ اور یاد ہے پہلی ملاقات میں تم نے اس سے ملتی جلتی باتیں کی تھیں؟ ہاں یاد ہے، دانیال نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو میں بھی تو ایک لڑکی ہی ہوں، فریحہ نے خوابناک لہجے میں کہا۔ اسے لگا وہ اداکاری نہیں کر رہی بلکہ یہی حقیقت بھی ہے۔ دانیال جان بوجھ کر انجان بن گیا، نہ معلوم اس کا دل کیوں لرزنے لگا تھا۔ اللہ پاک آپ کے نصیب میں ایسا ہی چاہنے والا لکھ دے، آمین۔ وہ چاہنے والا دانی بھی تو ہو سکتا ہے۔ میڈم آپ میری کہانی سننا پسند کریں گی؟ ہاں، فریحہ نے دلچسپی ظاہر کی۔ جواباً دانیال نے چند لمحے سوچ کر واقعات کو ذہن میں ترتیب دیا اور پھر بولا، میڈم میں نے ایک مزدور گھرانے میں آنکھ کھولی۔ میرا بچپن اور لڑکپن ایسے ہی گزرا جیسے غریب بچوں کا گزرا کرتا ہے۔ میں نہم جماعت میں تھا کہ ابو جان کا انتقال ہوا۔ معاشی مسائل نے آنکھیں دکھائیں، پڑھائی ترک کر کے میں نے آبائی پیشہ اختیار کیا۔ لڑکپن میں مزدوری کتنی سخت ہوتی ہے اس کا اندازہ کرنا شاید آپ کے لیے مشکل نہ ہو۔ بہرحال اللہ پاک نے توفیق دی اور میں نے گھر کا چولہا بجھنے نہ دیا۔ لیکن زندگی میں کھانا پینا ہی سب کچھ نہیں ہوتا، خاص کر جوان بدن کے تقاضے عجیب قسم کی سوچوں اور خیالات کو جنم دیتے ہیں۔ ایک نوجوان کے لیے سب سے زیادہ پرکشش عورت کی ذات ہوتی ہے۔ وہ ایسی عورت کے خواب دیکھتا ہے جس کی طرح خوبصورت کوئی نہ ہو، کوئی دوسری نہ ہو۔ بلکہ میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ ہر جوان کا خواب میڈم فریحہ جیسی لڑکی ہوتی ہے۔ میرا بھی یہی خواب تھا۔ وہ ایک لمحہ سانس لینے کو رکا۔ فریحہ کو لگا وہ آج اسی نشست میں اپنا مقصد حاصل کر لے گی۔ دانیال کی بات جاری رہی، مگر تلاش بسیار کے باوجود خوبصورت اور دلکش لڑکی تو درکنار، صرف لڑکی نہ مل سکی۔ کسی جگہ غربت آڑے آئی، کسی جگہ میری شکل و صورت۔ تنگ آ کر میں نے چور رستے سے اس جنس نایاب کو پانے کی کوشش کی اور ایک قصبی کے گھر جا نکلا، مگر یقین کرو میڈم، عورت کی یہ تذلیل مجھ سے دیکھی نہ گئی۔ میں نے کبھی اس طرح عورت کی خواہش نہیں کی تھی۔ میں اسے چھوئے بغیر بھاگ نکلا۔ وہاں موجود بوڑھی دلالہ نے مجھ پر آوازیں کسیں، مگر میں غیرت کے نام پر بھی وہ بے غیرتی نہ کر سکا۔ میرے پاک پروردگار نے مجھے بچا لیا، لیکن یہ تجربہ میرے دل سے صنف نازک کی محبت ختم نہ کر سکا۔ اور دانیال سارے واقعات تفصیل سے فریحہ کے گوشت گزار کرتا گیا۔ اور پھر ایک دن مجھے حماد بھائی ملا اور اس کی بدولت مجھے مسکان نصیب ہوئی۔ سچ کہوں تو اس جیسی نہ پہلے کبھی دیکھی اور نہ پھر کبھی ممکن ہے۔ میں نے اسے اتنی چاہت دی، اتنا پیار دیا، اتنی توجہ دی، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ وہ کسی اور کا نصیب، کسی اور کی قسمت ہے۔ وہ چلی گئی، مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ کیا کہتے ہیں، پیار کی راہ پہ انگلی تھامے اندھا دھند چل پڑتے ہیں، نہ سمجھی میں مر جاتے ہیں ہم سے سیدھے سادے لوگ۔ دانیال کی آنکھیں نمکین پانی سے لبریز ہو گئیں۔ وہ ٹھنڈا سانس لیتے ہوئے بولا، مجھے کیا پتا تھا وہ کسی غرض سے میرے پاس آئی ہے، اور پتہ ہے اس نے احساس گناہ کم کرنے کے لیے مجھے کار، مکان اور ایک دکان بنا کر دی، مگر یہ بھول گئی کہ میں دولت کا نہیں، اس کے پیار کا بھوکا ہوں۔ دولت کے حصول کے لیے میں نے بہت کوششیں کی، مگر باخدا ان کوششوں کا مقصد دولت نہیں بلکہ دولت کے حصول کے پس پردہ شریک حیات کا حصول تھا۔ اور مشی کو پانے کے بعد میرے سپنوں کو تعبیر ملی، اسے چند ہفتوں کی صورت میں پیار کی جو بھیک میری جھولی میں ڈالی ہے وہ میری زندگی کا حاصل ہے۔ میڈم آپ یقین کریں، اب مجھے کوئی لڑکی اچھی نہیں لگتی، کوئی بھی نہیں۔ بس مشی کو سوچنا، اس کے خواب دیکھنا، اس سے خیالوں میں باتیں کرنا، اسے ستانا، اسے منانا، اور بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ کچھ بھی تو نہیں چاہیے مجھے۔ میں جانتا ہوں وہ اب مجھے نہیں مل سکتی۔ حماد صاحب کے مقابلے میں میری شکل و صورت بس سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے۔ بس اسی طرح شاید اس نے مشی کو مجھ سے زیادہ محبت بھی دی ہو۔ فریحہ سانس روکے اس کی کہانی سن رہی تھی۔ اس کے احساسات عجیب سے ہو رہے تھے۔ اس کے ذہن میں خیال آیا، کیا حماد بھی مجھے اتنا ہی چاہتا ہے؟ جواب اسے نفی کی صورت میں ملا، اگر وہ اسے اتنا چاہتا تو یوں دولت کی خاطر مسکان کے در پر نہ پڑا ہوتا۔ اگلا سوال اس نے خود سے کیا، کیا میں اسے اتنا چاہتی ہوں؟ اس مرتبہ بھی حاصل جواب نفی ہی نکلا۔ میں نے بھی تو دولت کے لیے، اپنے محبوب کے لیے دوسرا حصے دار تسلیم کر لیا۔ میڈم کس سوچ میں پڑ گئی ہو؟ اسے خاموش پا کر دانیال نے سوال کیا۔ وہ چونک گئی۔ فوراً اس کا ذہن اپنے مقصد کی طرف متوجہ ہوا۔ دانی، میں نے کوئی سوال کیا ہے، کیا میں مسکان کی جگہ لے سکتی ہوں؟ وہ لگی لپٹی رکھے بغیر بولی، میڈم بچپن ہی سے حوروں کے حسن کے چرچے سنتا آ رہا ہوں، اور یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر اللہ پاک کسی حور کو زمین پر اتار دے تو شاید وہ آپ کو دیکھ کر شرمساری سے واپس لوٹ جائے۔ فریحہ کو اس کی تعریف کا بے ساختہ انداز بہت اچھا لگا کہ وہ کھلکھلا کے ہنستے ہوئے بولی، دانی یہ میری بات کا جواب نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ کیا میں مسکان کی جگہ لے سکتی ہوں؟ اس مرتبہ دانیال نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ دانیال، کیا وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے؟
फरीहा की सांस अतल पतल होने लगी। दानियाल उसे हैरान किए दे रहा था। नहीं मैडम, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि किसी से भी पूछा जाए तो वो यही कहेगा मैडम फरीहा खूबसूरत है। लेकिन क्या? उसे बेसब्री से पूछा। वो साफ गोई से बोला, वो आपसे खूबसूरत नहीं है, पर मुझे लगती है हर किसी से ज्यादा प्यारी लगती है। क्या मुझे ठुकरा दोगे? उसे अपनी आवाज़ पाताल से आती महसूस हुई। उसे लगा वो सचमुच दानियाल से मोहब्बत की भीख मांग रही है। मैडम, मैं नहीं जानता आपकी इस ऑफर के पीछे क्या मकसद पिन्हा है। अलबत्ता ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि कम से कम आपको मुझसे मोहब्बत नहीं है। आप किसी गर्ज के बगैर आई होती और सचमुच आपके दिल में मेरी मोहब्बत छुपी होती, तब भी मैं आपका साथ ना दे पाता। हालांकि आप जैसी खूबसूरत गदाओं के नहीं, शाहों के हरम की जीनत होती है, फिर भी इस फकीर को बस मिशी चाहिए। फरीहा को हैरत का झटका सा लगा। वो सादा दिल मजदूर इतना खतरनाक किस्म का क्याफा नाश होगा, उसे मालूम नहीं था। खामोश रहना उसके अंदाजे को सच्चा साबित करना था। वो गुस्से से गोया फट पड़ी। शट अप! क्या मैं तुम्हें धोखेबाज लगती हूँ? हर लड़की को तूने मुस्कान समझ रखा है। ये कहते हुई ही वो अपनी जगह पर खड़ी हो गई, मगर इससे पहले कि वो रवाना होती, दानियाल ने उसका मुलायम हाथ पकड़ लिया। नहीं मैडम, ऐसे नहीं, बैठो, मेरी बात सुनो। उसके हाथ को कई बार हम्माद ने पकड़ा था, मगर इस काले के खुरदरे हाथों में जाने कौन सा जादू था कि फरीहा के दिल की धड़कन तेज हो गई। अजीब किस्म की ख्वाहिशें सर उभारने लगीं। दानियाल की जुर्रत उसे हैरान कन लगी। वो सख्त लहजे में बोली, छोड़ो मेरा हाथ। नहीं छोड़ूंगा। दानियाल ने इनकार में सर हिलाया। छोड़ो वरना सबके सामने थप्पड़ लगा दूंगी। उसने गुस्सा जाहिर किया। नहीं मारोगी? दानियाल के इत्मीनान में फर्क नहीं आया था। क्यों नहीं मारूंगी? इसके दो जवाब हैं। नंबर एक, थप्पड़ मारने वाले धमकी नहीं देते, और नंबर दो, इतने नाजुक हाथ जब इस थोबड़े पर लगेंगे तो दर्द नहीं करने लग जाएंगे क्या? फरीहा के चेहरे पर मुस्कुराहट जाहिर हुई और वो बैठ गई। दानी, क्या ये बातें हमेशा हमेशा के लिए मेरा नसीब नहीं बन सकती? मैडम, अगर आप अपना मतमाए नजर बता दें तो मेहरबानी होगी। फरीहा ने पैंतरा बदला। दानी, सच तो ये है कि मैं एक गरीब लड़की हूँ। तुम्हारी मुस्कान ने वादा किया है कि अगर मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूँ तो वो मुझे माला माल कर देगी। बस लालच में आ गई। हमाद ऐसे ही मुझे धोखा दे चुका है। अब जिंदगी का कोई मुसरफ ही नजर नहीं आता। मैडम, मैं आपको धोखा नहीं दे सकता। मैं मिशी की जगह किसी को नहीं दे सकता। अगर आपसे शादी कर भी लूँ तो मिशी मुझे नहीं भूलेगी, और शायद दिन रात उसका तस्करा आपसे बर्दाश्त ना हो। सबसे बढ़कर मिशी को तलाक में इस सूरत में भी नहीं दूंगा। वो बआसानी अदालत से खुला ले सकती है। फरीहा एक बार फिर उसे समझाने जुट गई। दानियाल ने उसकी तायद में सर हिलाया। बेशक ले सकती है, बल्कि उम्मीद वासिक यही है कि जज मुझे देखते ही बगैर किसी दूसरी दलील के केस का फैसला मिशी के हक में कर देगा। तो फिर ये कि मैं उसके बाद भी मिशी को तलाक नहीं दूंगा। सारी जिंदगी उसके इंतजार में गुजार दूंगा। अगर पूरी दुनिया भी उसे धुतकार देगी, तब भी मेरी बाहें उसे गले से लगाने के लिए फैली रहेंगी, और मेरी आंखें उसकी राह में बिछी रहेंगी। वो क्या कहते हैं, हम ये आंखें तुम्हारे रास्ते में जिंदगी भर बिछा के रखेंगे। फरीहा ने दोनों हाथों से सर थाम लिया। दानियाल उसके लिए टेढ़ी खीर साबित हुआ था। दानी, वो इस हरदर्मी पर मुश्तइल होकर तुम्हें कोई नुकसान भी पहुंचा सकती है। हाँ, ये धमकी वो दे चुकी है। उसे तो मैंने मुतला कर दिया था। आप सुन लें कि अब मुझे मौत जिंदगी से बहुत प्यारी लगने लगी है। मेरे लिए सबसे बड़ा सदमा मिशी की जुदाई का था, वो मैं झेल चुका हूँ। अच्छा, पता है सुबह से हम बातें कर रहे हैं, लेकिन खाने पीने के बारे में वेटर को कुछ नहीं बता सके हैं। फरीहा ने हंसते हुए मौजू बदला। दानियाल की नफ्सियात देखकर उसे बहुत आसान काम, बहुत मुश्किल लगने लगा था। दानियाल ने पूछा, आप बताएं, क्या पसंद करेंगी? मेहमान तुम हो। नहीं, ये आपका घर नहीं, होटल है, और होटल का बिल मर्द के जिम्मा होता है। कुछ भी कहो, बुलाया तो मैंने था। फरीहा अड़ गई। भाई, चाय और कुछ खाने को ले आओ। दानियाल ने करीब से गुजरते बैरे को ऑर्डर पास कर दिया। दानी, मैं इतनी गरीब नहीं हूँ जितना तुमने समझ लिया है। अच्छा छोड़ो इस यानी बहस को, मेरी एक बात मानोगी? सुनकर ही कुछ बता सकूंगी, फरीहा ने सोचते हुए जवाब दिया। नकाब ओढ़ा करो। क्या? वो मुतर्जिब अंदाज में हंसी। भला ये क्या बात हुई? मैडम, जरा दाएं बाएं की टेबल्स पर नजर दौड़ाओ। हाँ तो क्या है? उसने चारों तरफ सरसरी नजर डाली। ज्यादातर मर्द उसी की जानिब मुतवज्जे थे, और इस किस्म की भूखी नजरों की वो आदी हो चुकी थी। हराम खोर गिद्ध भी इन्हीं नजरों से अपने शिकार को घूरते हैं। वो बेपरवाही से बोली, तो घूरते रहे, मुझे क्या? शायद तुम्हारे शोहर को ये पसंद ना आए। यकीन करो, मैं बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर किए बैठा हूँ। अगर आपकी गलती ना होती तो अब तक जाने कितनों का गिरबान थाम चुका होता। मगर क्यों? उसकी हैरानी दो चंद हो गई। मैडम, अगर आप मेरी होती तो मैं कैसे बर्दाश्त करता कि कोई और आपको देखे। हाँ, गोया तो मुझ पर किसी की नजर भी ना पड़ने देते। हाँ, किसी भी गैर मर्द की नजर ना पड़ने देता। आप जरा दाएं तरफ पांचवी मेज पर बैठी लड़की को देखें।
मतलूबा जानी फरीहा को एक नकाबपोश लड़की अपने साथी के साथ बैठी नजर आई। मैडम, पता नहीं वो खूबसूरत है या बदसूरत, लेकिन उसके सामने मौजूद मर्द जो यकीनन उसका शोहर होगा, उसे मालूम है वो कैसी है। बाकी मर्दों की गंदी नज़रों से वो बची हुई है। अगर शोहर को वो पसंद है तो उसे किसी दूसरे की पसंदीदगी की क्या ज़रूरत, और अगर शोहर को नापसंद है तो किसी दूसरे की पसंदीदगी से उसे क्या हासिल। मैंने एक जगह पढ़ा था कि एक मर्तबा दुल्हन को सजाया जा रहा था। जो औरत आती उसके हुस्न की तारीफ करती, मगर वो दुल्हन इन सारी तारीफों से बेनियाज किसी गहरी सोच में थी। एक करीबी सहेली ने उससे पूछा कि ये सब औरतें तुम्हारी तारीफ कर रही हैं, तुम्हें इस बात पर खुशी नहीं हो रही। उस पर दुल्हन ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। कहने लगी, खुशी तो तब होगी कि जिसके लिए मुझे सजाया जा रहा है उसे भी इतनी खूबसूरत और प्यारी लगूं। इन सब औरतों की तारीफ या तनकीद से मुझे क्या हासिल। दानियाल की बात ने उसे सोच में डाल दिया था। एकदम उसे चुभती नजरों का एहसास हुआ और वो किसमिसा कर रह गई। इसी वक्त बैरे ने भी आकर उनके सामने चाय और खाने के लवाजमात रख दिए। मैडम, मेरी बात बुरी तो नहीं लगी? नहीं। उसने गले में झूलता मुख्तसर सा दुपट्टा सर पर जमाने की कोशिश की, मगर वो फैशनेबल दुपट्टा औरत की तकरीम के तकाजे कहाँ पूरे कर सकता था। मैं जानता हूँ आप शायद मेरा दिल रखने के लिए ऐसा कह रही हैं, मगर फरी, यकीन करो ये औरत की तौहीन है। बहुत सौ को कहते सुना है कि पर्दा आंख का होता है। अगर यूं है फिर तो सारे कपड़े उतार देने चाहिए, क्योंकि हया वाला बगैर पर्दों और बगैर कपड़ों की औरत को भी नहीं देखेगा, और बेहया के तसव्वुर में तो कपड़ों वाली भी बरहना है। वो मैडम से बराह रास्त फरी कहने पर उतर आया। बहुत सख्त बात कह दी है तुमने। फरिया संजीदा हो गई थी। हाँ, मगर हकीकत है। आपने ये भी सुना होगा कि मगरिब ज़दा बीमार ज़हनियत की औरतें आज़ादी निस्वां के खुशकुन नारे, मर्दों के शाना बिशाना चलने के दावे, और मर्द औरत एक गाड़ी के दो पहिए हैं जैसी कहावतें सुनाकर शोर मचाती रहती हैं। कोई उनसे पूछे कि आज़ादी का मतलब लिबास की कैसे आज़ाद होना है? मर्दों के शाना बिशाना चलने का मतलब मर्दों की मुश्किलात में उनका हाथ बटाना है, या गैर मर्दों के हाथों में हाथ डालकर अपनी इज्जत का जनाजा निकालना है? और जहाँ तक एक गाड़ी के दो पहियों का ताल्लुक है, तो गाड़ी तब तक ही चलती है जब दोनों पहिए अपनी अपनी जगह घूमते हैं। अगर दोनों पहिए एक साइड पर लगा दें तो गाड़ी ने गिरना ही है। मर्द की जिम्मेदारियां घर से बाहर की और औरत की घर की हदूद में। कितनी प्यारी और मुनासिब तकसीम है। एक औरत को शोहर, भाई और बाप को खाना पेश करना बुरा लगे, और गैर मर्दों के सामने वेटर्स की ड्यूटी करते हुए वो खुद को आज़ाद महसूस करे, क्या आंधी आंधी मंतक है। फरीहा मुतासिर कुन लहजे में बोली, दानी, तुम्हारी तालीम मिडल है और बातें प्रोफेसरों की तरह कर रहे हो। आपने मेरी बात मानना है कि नहीं? दानी, मुझे अजीब सा लगेगा। वो सचमुच रूहानी होने लगी। नहीं लगेगा, आप उठें, चले मेरे साथ। वो खड़ा होते हुए बोला। मगर कहाँ? चलना है कि नहीं? वो मिसर हुआ। अच्छा, चलती हूँ। वो खड़ी हो गई। दानियाल ने काउंटर पर जाकर बिल अदा किया। फरिया जाने क्या सोचकर खामोश रही थी। थोड़ी देर बाद वो टैक्सी में बैठे मार्केट का रुख कर रहे थे। एक कपड़े की दुकान से दानियाल ने काले रंग की खूबसूरत सी चादर खरीदी और फरिया की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो ये ओढ़ो। पागल, उसे होले से मुस्कुराकर कहा, और चादर लेकर ओढ़ ली, यूं कि उसकी सिर्फ आंखें नजर आ रही थीं। हया औरत का जेवर है फरी, दानियाल चाहत से बोला। और आओ, अब तुम्हें घर घर छोड़ दूं। दानी, कल मिलने आओगे? नहीं, दानियाल ने नफी में सर हिलाया। कल से मैं मजदूरी के लिए जाऊंगा। क्या अब भी अपनी बात पर कायम हो? मुस्कान से सौदा नहीं करना? कैसा सौदा? तलाक के बदले कार, दुकान और मकान लेने का सौदा? नहीं, वो क्या कहते हैं, दिल में होता तो किसी तौर निकल भी जाता। अब तो वो शख्स बहुत दूर तलक है मुझ में। अगर मैं कहूँ फिर भी नहीं, फरीहा ने बड़े मान से कहा। फरी, तुम बहुत अच्छी हो। मैं जानता हूँ मुझे मौत के हवाले करने पर तुम कतई तैयार नहीं होगी। इस मर्तबा फरिया खामोश हो गई थी। उसे महसूस हुआ वो काला उसे बहुत अच्छा लग रहा है। अपना अपना, बहुत करीबी। कोई ऐसा जिसे वो बरसों से जानती है, कोई ऐसा जिससे वो हर बात मनवा सकती है, कोई ऐसा जो उसकी बहुत इज्जत और ख्याल रखने वाला है, और कोई ऐसा जिसकी जान उसे अजीज है। खफा हो उसे खामोश पाकर दानियाल ने पूछा, नहीं, चुप क्यों हो गई? यूं ही कहने को कुछ रहा ही नहीं है, क्या कहूँ? दानियाल फीकी मुस्कुराहट से बोला, मैं तुम्हें बहुत बदसूरत लगता हूँ, है ना? फरीहा ने उसकी आंखों में झांका और फिर उसका खुरदरा हाथ अपने मुलायम हाथों में थामते हुए बोली, अगर घंटा भर पहले मुझसे ये पूछा जाता और मैं सच बोलने पर मजबूर होती तो मेरा जवाब बस बात में होता। और अब? वो चंद लम्हे उसके चेहरे को घूरती रही और फिर बेसाहता झुक कर उसने दानियाल की हथेली पर याकूती लब रख दिए। दानियाल की आंखों में नमी जाहिर हुई। फरी, काश तुम मुझे मिशी से पहले मिली होती, ये कहकर उसने ड्राइवर से टैक्सी रोकने को कहा। उसने साइड पर करते हुए टैक्सी रोक दी। क्या हुआ? फरीहा ने पूछा। फरी, अपना बहुत ख्याल रखना, बहुत ज्यादा। आइंदा मुझे कॉल करने की कोशिश ना करना। मैं तुम्हारी चाहत के काबिल नहीं हूँ। एक तही दस्त और मुफलिस शख्स हूँ। एक दिल था मेरे पास जो अब किसी और के कब्जे में है। दानी, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ।
कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे बारे अच्छी सोच रखता हूँ, सच की मिलावट से उसे तल्ख़ नहीं करना चाहता। ये कहकर उसने जेब से अपनी आखिरी पूँजी निकाली और टैक्सी ड्राइवर को किराए की मद में दे दी। वहाँ से उसे पैदल ही घर तक जाना था। फ़रीहा उदासी से उसे जाता देखती रही। उसके दिल में इस मुख़लिस, सादे और महरूम शख़्स के बारे बहुत ज़्यादा हमदर्दी जमा हो गई थी। बाजी चलें? टैक्सी ड्राइवर ने पूछा। उसने चेहरे से लिपटी चादर दुरुस्त करते हुए कहा, हाँ, चलो। और ड्राइवर ने इस बात में सर हिलाते हुए टैक्सी आगे बढ़ा दी। आई एम वेरी सॉरी हम्माद, मुझे अफ़सोस है लेकिन मैं नाकाम हो गई हूँ। फ़रीहा की बात सुनकर हम्माद शुश्तर रह गया था। पहले ही दिन नाकामी का एतराफ़ कर रही हो? हाँ, क्योंकि वो जान तो दे सकता है, मुस्कान को तलाक नहीं दे सकता। मतलब उसे ज़िंदगी अज़ीज़ नहीं है। हम्माद के लहजे में दरिंदगी झलकी। हम्माद, तुम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। फ़रीहा के लहजे में छुपी घबराहट उसे हैरान कर गई। परी, क्या हुआ है तुम्हें? मुझे कुछ नहीं हुआ। उसे गड़बड़ाते हुए वजाहत की, लेकिन मैं तुम्हें कातिल नहीं देखना चाहती। शट अप यार, हम्माद ने उसे झिड़का। मेरे सारे मंसूबे की राह में एक अहमक रोड़े अटका रहा है और तुम उसकी तरफदारी कर रही हो। यू शट अप, फरीहा तपकर बोली। वो मेरा यार है ना कि तुम इस तरह बकवास कर रहे हो। तुम अच्छी तरह जानते हो उसके बारे में मेरे दिल में क्या है। फिर ऐसी बकवास का मतलब? परी, कामयाबी चंद कदम के फासले पर रह गई है और एक गधा फजूल जिद में अड़ गया है। पता है ना, जब घी सीधी उंगलियों से ना निकले तो क्या किया जाता है? हाँ, पता है। घी गर्म कर लिया जाता है, क्योंकि टेढ़ी उंगली डिब्बे में फंसकर जख्मी भी हो सकती है। परी, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं भी मजाक नहीं कर रही। तुम दानियाल को हाथ भी नहीं लगाओगे। वो एक मजलूम और बेज़रर शख्स है। तो क्या करूं? फरीहा ने कहा। एक बात पूछूं? वो बेजारी से बोला। पूछो। दौलत अजीज है या फरी? ये भी कोई पूछने की बात है? वजाहत करो। फरी अजीज है। ठीक है, लानत भेजो उस दौलत पर। मुझे नहीं चाहिए ये ऐश। बहुत हो गया, तुम मेरे पास आ जाओ। परी, हर वक्त फजूल की ना हाँकती रहा करो। वो जज्बाती हो गई। बस यही मोहब्बत थी। उस अहमक गवार और गधे ने तो अपनी मुस्कान के लिए हर किस्म की आसाइश को ठोकर मार दी। वैसे सही कहते हो कि वो अहमक है। कोई अहमक ही ऐसा कर सकता है, वरना अक्ल और शऊर रखने वाली एक लड़की के लिए भला वरना अक्ल और शऊर रखने वाला एक लड़की के लिए भला इतनी कुर्बानी दे सकता है। यूं भी दौलत हो तो कई लड़कियां मिल सकती हैं। पैसे की झलक दिखाओ, कई फरीहाएं दौड़कर गले से लग जाएंगी। और दौलत ना हो तो कोई खाना बदोश भी नहीं मिलती। हमाद ने जहरखुंद लहजे में पूछा, इस सारी बकवास का मतलब? वो एक एक लफ्ज चबा कर बोली, तुम दानियाल को कुछ नहीं कहोगे। हमाद अपनी जगह से उठता हुआ बोला, वो कल का सूरज नहीं देख सकेगा। वो ये कहकर वो जाने के इरादे से मुड़ा, मगर वह मुश्किल 2-3 कदम ले पाया होगा कि उसे फरीहा की आवाज़ सुनाई दी। हमाद, ये मेरा वादा है तुम्हारे साथ, अगर दानियाल मरा तो फरीहा भी तुम्हें जिंदा नहीं मिलेगी। हमाद के कदम रुक गए थे। वो ताज्जुब से फरीहा की तरफ मुड़ा। तुम्हारी इस बकवास का मतलब क्या है? वो इत्मीनान से बोली, वही जो तुमने समझा। मेरा ख्याल है वो काला तुम्हें कुछ ज्यादा ही अजीज हो गया है। अगर तुम देखने वाली नजर रखते तो यकीनन इस बात में तुम्हें मेरी वो मोहब्बत नजर आ जाती जो तुम पर कोई आंच आते नहीं देख सकती। वो सर पकड़ कर बैठ गया। चंद लम्हों बाद उसके मुंह से निकला, फरी, तुम क्या चाहती हो? वो हतमी लहजे में बोली, तुम्हें कत्ल की इजाजत नहीं दूंगी, एंड दैट्स ऑल। उससे झुल्ला कर पूछा, तो फिर ये बैल कैसे मढ़े चढ़ेगी? मैं नहीं जानती। मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हारा रवैया मेरे लिए हैरान कुन ही नहीं, परेशानी का बायस भी बन रहा है। ये सारा प्लान पहले से तय था? नहीं, सिर्फ मुस्कान की मौत पहले तय हुई थी और अब मेरा जी उससे भी खट्टा हो गया है। ये बकवास अपने पास रखो। फिलहाल मैं उस हबशी से निपटने का कोई प्लान सोच लूं, फिर देखूंगा तुम कैसे रोकती हो मुझे। ये कहकर वो लंबे लंबे डग भरता हुआ बाहर चल दिया। इस मर्तबा फरीहा ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की थी। उसके जाते ही वो बेड पर लेटकर इस गोरख धंधे पर गौर करने लगी। उसकी समझ में नहीं आ रही थी कि उसका क्या बनेगा। हमाद की मोहब्बत, जिस पर उसे कभी नाज हुआ करता था, आज आज दानियाल की मोहब्बत के सामने हीश नजर आ रही थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि मुस्कान इतनी खुशकिस्मत हो सकती है। दानियाल की बेलौस चाहत ने उसकी सोच में भी इनकलाब पैदा कर दिया था। वो काला कलूटा जिसे वो शर्मसार करने गई थी, वो बदसूरत जिसे उसने नीचा दिखाना था, वो कंगला जिसने उसके इंतकाम का निशाना बनना था, उसे पता ही ना चला वो उसे कैसे इतना अच्छा लगने लगा और उसे बेहद हमदर्दी महसूस होने लगी। इस हमदर्दी के पसे पर्दा क्या जज्बा कार फरमा था, ये वो ना जान सकी। मुस्कान के लिए यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि दानियाल फरीहा जैसी लड़की को धुतकार देगा, मगर हम्माद के चेहरे पर चाहे नाकामी के वाज़े तासुरात इस अनहोनी की तायद कर रहे थे। अब क्या होगा? उसने सरसराते लहजे में पूछा। अब तुम देखना मैं क्या करता हूँ।
حماد کی آنکھیں شعلے برسانے لگیں۔ اس کے ساتھ وہ دل ہی دل میں اس دن کو کوس رہا تھا جب اس نے ایسے کھپتی کو استعمال کرنے کے بارے میں سوچا تھا۔ حماد پلیز کوئی غلط حرکت نہ کرنا۔ تم فکر نہ کرو، میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے میں قانون کی گرفت میں آ سکوں۔ پھر بھی بتاؤ، بتاؤ تو صحیح، مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ ساری پریشانیاں اور تفکرات بھلا کر آرام کرو، ان سب پریشانیوں کے لیے میں ہوں نا۔ یہ کہہ کر وہ اپنی خوابگاہ میں گھس گیا۔ ایک مبہم سا منصوبہ اس کے ذہن میں تھا اور وہ اکیلے میں غور کر کے اسے حتمی شکل دینا چاہتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد مسکان نے سالن کا ڈونگا اپنی جانب کھسکایا اور پلیٹ میں سالن نکال کر کھانے لگی۔ اس کے دل و دماغ میں ایک جنگ جاری تھی۔ دانیال نے اپنے ہر دعوے کو سچ کر دکھایا تھا۔ اس کی مسکان سے محبت میں کوئی کھوٹ بھی نہیں مل پایا تھا۔ کھانا کھا کر وہ تھوڑی دیر کوٹھی میں لگی نرم گھاس پر ننگے پاؤں ٹہلتی رہی اور پھر اپنے کمرے میں آ گئی۔ بیڈ پر لیٹ کر وہ اس گتھی کو سلجھانے لگی کہ آخر اس پریشانی کی خبر میں خوشی کا کون سا پہلو پنہاں ہے کہ اس کا دل باغ باغ ہو رہا ہے۔ اسے اپنے ان احساسات پر ندامت ہوئی۔ اگر حماد اس کی یہ کیفیت جان لیتا تو وہ اسے منہ دکھانے کی بھی قابل نہ رہتی۔ اس کے دماغ میں رہ رہ کر حماد کا وہ فکرہ گونجنے لگتا کہ جو اس نے اسے ایبٹ آباد سے واپس بلانے کے لیے کہا تھا۔ یہ تو ایک بدصورت مرد کے ساتھ تمہارا برتاؤ ہے، اگر کوئی خوبصورت مرد ہوتا تو شاید تم ہر حد عبور کر لیتی ہے نا۔ وہ حماد کی محبت میں سرخرو رہنا چاہتی تھی۔ اس نے دانیال کی سوچوں کو دماغ سے جھٹکا اور حماد کے ساتھ بتائے سہانے پل یاد کرنے لگی۔ شروع میں وہ کیسے اس کی گاڑی کے رستے میں کڑا چشم براہ رہتا۔ وہ کلاس کی طرف جاتی تو اس کے پیچھے پیچھے چلتا، لائبریری میں مطالعہ کرنے جاتی تو اس کے قریب کسی کرسی پر ڈیرا جما کر کتاب پڑھنے کے بہانے اسے تکتا رہتا، یہاں تک کہ اس نے مسکان کو اپنی جانب مائل کر لیا تھا اور محبت کے لفظ سے بیزاری محسوس کرنے والی اس راہ پر سرپٹ دوڑنے لگی تھی، یہاں تک کہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے ایک غیر مرد کے ساتھ تنہائی میں کئی ملاقاتیں بھی کر ڈالی تھیں۔ یہ علیحدہ بات کہ اس نے حماد کو ہاتھوں کے علاوہ بدن کا کوئی حصہ چھونے کی اجازت نہیں دی تھی۔ حماد کی ابتدائی محبت کی تندی اور تیزی کو یاد کرتے ہوئے اچانک اسے محسوس ہوا کہ حماد سے محبت کے عہد و پیمان ہونے کے بعد اس کی وارفتگی میں بتدریج کمی آتی گئی، یہاں تک کہ شادی کے بعد وہ محبت جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ مسکان نے کبھی اپنی محبت میں کمی نہیں دیکھی، مگر حماد کی توجہ میں بہت فرق آ گیا تھا۔ وہ اس بات کو سمجھ نہیں پائی تھی، اس کے خیال میں کے مطابق یہی محبت کا منطقی انجام تھا، مگر دانیال کی محبت پا کر اسے پتہ چلا تھا کہ حقیقی محبت کیا ہوتی ہے۔ اس کی ہر بات، ہر ادا اور ہر عمل سے مسکان کی محبت یوں ٹپکتی تھی جیسے سوراخ زدہ چھتے سے شہد ٹپکتا ہے یا کسی کٹی ہوئی شریان سے خون ابلتا ہے۔ مسکان کے نفرت بھرے رویے کے باوجود اس کی محبت میں کمی نہیں آئی تھی۔ ایک دم اسے خیال آیا کہ وہ حماد کو یاد کرتے کرتے پھر دانیال کو سوچنے لگی ہے۔ اف، یہ کالا جادوگر! وہ غصے سے بڑبڑائی اور کروٹ بدل کر تمام خیال ذہن سے نکال کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ مشی، اس کے ذہن میں دانیال کی سرگوشی گونجی، کیا ہے، سونے دو نا۔ دوسری سرگوشی اس کی اپنی تھی، وہ کہتا اگر چاند کا دیدار نصیب نہیں ہوگا تو نیند کیسے آئے گی۔ وہ شرارت سے کہتی، سمجھو آج چاند رات کو دیر سے نکلے گا، اور وہ اٹھ کر بیٹھ جاتا، ٹھیک ہے جی آپ سوئیں، میں تو چاند کے نکلنے کا انتظار کروں گا۔ اف کہہ کر وہ اس کی جانب کروٹ بدل لیتی۔ وہ اس کی ناک کی پھننگ پکڑ کر کہتا، نخرے دیکھو مشی صاحبہ کے، گویا احسان کر رہی ہے مجھ پر۔ نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہیں کرتی احسان، جا رہی ہوں امی جان کے ساتھ سونے۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرتی مگر وہ جھپٹ کر اسے پکڑ لیتا اور اگلا پورا گھنٹہ اس کی منت سماجت کرتا رہتا۔ مسکان کی آنکھوں سے نیند غائب ہو جاتی، پتہ نہیں کیوں اس کا منتیں کرنا اسے اچھا لگتا، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتی ہوتی کہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جس کی بدولت منت کی ضرورت پڑے، مگر پھر بھی وہ اس کے منانے سے محظوظ ہوتی۔ وہ منانے کے لیے صرف الفاظ استعمال نہیں کرتا تھا، کبھی کبھی یہ منانا پوری رات جاری رہتا اور صبح کی اذان کے ساتھ مسکان کو غصہ آتا کہ رات اتنی مختصر کیوں تھی۔ وہ اسے نہ سوچنے کا تہیہ کر کے بھی اسے سوچتی رہی اور پھر اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ مجھے صرف مشی چاہیے، اگر جنت سے حور بھی لا کر دو تو قبول نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ کیا کریں مشی؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے نکلے۔ بے وقوف، احمق، جاہل، گوار، تمہیں مسکان ہی ملی تھی محبت کرنے کے لیے، وہ جو خود کسی کی محبت میں گرفتار ہے۔ مگر دانیال مسکراتا رہا، پگلی، یہ کوئی اپنے بس میں تھوڑی ہوتا ہے، اور آج تم نے فریحہ کو بھیجا تھا مجھے برگلانے کے لیے، ہے نا؟ بھول گئی تھی میں نے کیا کہا تھا؟ نہیں آتا، بس آزمانا چاہتی تھی تم مشی، کب میری محبت پر یقین آئے گا تمہیں؟ اچھا ایک بات بتاؤ، لیکن تمہیں اللہ پاک کی قسم سچ بتانا۔ پوچھو، کیا سچ مچ طلاق چاہیے تمہیں؟ وہ سوچنے لگی، کافی دیر گزر گئی، اس نے ایک مرتبہ پھر پوچھا، بتاؤ۔
बताओ ना, वो सिसकी। हाँ। दानियाल के मुस्कुराते चेहरे पर कर्ब आमेज तासुरात हुवेदा हुए और वो होले से बोला, मिशी, आज तक मैं यही समझता रहा कि तुम ऊपरी दिल से तलाक मांग रही हो। माफ करना, मुझे पता नहीं था तुम संजीदा हो। अब मैं तुम्हें मायूस नहीं करूंगा, ज्यादा से ज्यादा मर ही जाऊंगा ना। ये कहकर दानियाल का चेहरा उसकी नजरों के सामने से मादूम होने लगा। उसने हिचकिचाते हुए हाथ उठाकर उसे रोका, बात सुनो। मगर वो गायब हो गया था और उसके साथ उसकी आंख खुल गई। दानियाल उस दिन सवेरे ही घर से निकल गया था। स्टील मिल के साथियों ने उसे हाथों हाथ लिया। वो एक जफाकश और मेहनती शख्स था। ऐसे मजदूरों को हर कोई पसंद करता है। वो काफी दिनों के बाद काम पर लौटा था। मुसलसल आराम इंसान को कितना नाकारा कर देता है, उसका अंदाजा उसे 2-3 घंटों के बाद ही हो गया था। जब वो अच्छी खासी थकन महसूस करने लगा, उसकी जफाकशी की वजह से सारे साथी उसे रोबोट कहते थे। जैसे ही थकन के आसार उसके चेहरे से हुवेदा हुए, उसके दोस्त अनवर ने पूछा, लगता है आज रोबोट में कोई टेक्निकल खराबी आई हुई है। वो हंसा, नहीं यार, टेक्निकल खराबी नहीं है, पुर्जों को हल्का जंग लग गया है। 2 माह आराम जो कर लिया है। तुम्हारी हिम्मत है यार, 2 माह के बाद काम को हाथ लगाया है और 2-3 घंटे से मुसलसल शुरू हो। नहीं, अब थोड़ा आराम करूंगा। वो साइड पर होकर बैठ गया। अनवर ने भी उसका साथ दिया और कैंटीन वाले को चाय का बताकर उसके साथ आ बैठा। अच्छा, तुमने बताया नहीं है कि इतना अरसा कहाँ गायब रहे हो? कहीं नहीं यार, एक दुकान पर काम करने का मौका मिला था। बाद में मालिक से अनबन हो गई और मैं लौट आया। मगर दुकानों वाले तो बहुत कम तनख्वाह देते हैं और पाबंदी भी बहुत ज्यादा होती है। दानियाल ने उसकी तस्दीक करते हुए कहा, हाँ ये तो है, 8-9 हज़ार से भला कहाँ गुजारा होता है। अलबत्ता काम आसान होता है। 8-9 हज़ार भी नहीं देते हैं। अनवर ने मुंह बनाया। वैसे हैरानी की बात यह है कि रोबोट कब से आराम पसंद हो गया। नहीं, आराम पसंद तो है नहीं हुआ, बस बुढ़ापे का ख्याल आ गया था कि कब तक ये जफाकशी की जिंदगी गुजारेंगे। कोई ऐसा काम होना चाहिए जिसमें बढ़ती उम्र का रुकावट ना बन सके। बढ़ती उम्र क्या यार, चंद साल के अंदर बच्चे जवान हो जाएंगे, फिर वो जाने और उनका काम। जवानी उन पर लुटा दी, बुढ़ापे में वो संभालेंगे। दानियाल ठंडा सांस लेकर खामोश हो गया। इसी वक्त अनवर को याद आया कि उसने तो शादी ही नहीं की थी। उसने सिलसिला कलाम जारी रखते हुए पूछा, वैसे ताज्जुब होता है कि आप जैसा जवान अभी तक शादी करने में नाकाम रहा है। शादी के जिक्र पर दानियाल की आंखों के सामने अपनी मिशी का कोमल चेहरा लहराने लगा। छोड़ो यार इस मौजू को। वो प्लेट से समोसा उठाकर खाने लगा जो कैंटीन वाला लड़का उनके सामने रख गया था। चाय पीकर वो दोबारा काम करने लगे। वहां उन्हें दिहाड़ी के बजाय काम की मिकदार पर उजरत मिलती थी, इसलिए जो मजदूर जितना आराम करना चाहता उसे टोका नहीं जाता था। जोहर की अजान के वक्त उसका मोबाइल बजने लगा। फरीहा की कॉल थी। जी फरी, उसने अटेंड की। दानी कहाँ हो? स्टील मिल में। किस वक्त में छुट्टी करोगे? करीबन शाम की अजान के वक्त। अभी नहीं कर सकते? क्यों? तुमसे मिलना है, एक जरूरी बात करनी है। मगर मैं नहीं सुनना चाहता, उसने सख्ती से इनकार कर दिया। वो हुक्मिया लहजे में बोली, ठीक आधे घंटे बाद तुम उसी होटल में होगे जहां कल मुलाकात हुई थी। अगर ना आया तो? दानी, आधे घंटे से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। उसके लहजे में अजीब एतमाद था। अगर मेरे पास अपनी गाड़ी हो तब भी वहां तक घंटे से ज्यादा वक्त खर्च होगा। अच्छा, तुम किस स्टील मिल में काम करते हो? जवाबन उसने स्टील मिल का नाम बता दिया। ओके, मैं शालीमार रेस्टोरेंट में आ रही हूँ। स्टील मिल से यहाँ तक का 10 मिनट का रास्ता होगा। परिया ने उसे नई जगह बताई। तुम इस वक्त कहाँ हो? मैं टैक्सी में हूँ। पहले प्रिंस होटल जा रही थी लेकिन अब ड्राइवर को शालीमार का बता दिया है। मुझे वहां पहुंचने में आधे घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। क्या मिलना बहुत जरूरी है? वो गुस्से से बोली। नहीं, लेकिन तुम्हें आना पड़ेगा। और कुछ? दानियाल ने कहा। अच्छा ठीक है मोहतरमा, और फरीहा ने हंसते हुए राब्ता मुनक़ता कर दिया। दानियाल ने उस दिन के साथ अगले पूरे हफ्ते की दिहाड़ी एडवांस वसूल कर ली कि उसके पास खर्चा बिल्कुल खत्म था, और स्टील मिल से बाहर निकल आया। मज़कूरा होटल वहां से थोड़े फासले पर था, लेकिन वैगन में बैठकर वो चंद मिनट में वहां पहुंच गया। फरीहा अभी तक नहीं पहुंची थी। वो उसका इंतजार करने लगा। उसे ज्यादा देर इंतजार ना करना पड़ा। जल्द ही उसे होटल के दाहिने दरवाजे से काली चादर ओढ़े एक लड़की अंदर दाखिल होती दिखाई दी। उसकी कामत से दानियाल ने उसे आसानी से पहचान लिया था। एक लम्हा रुक कर उसे चारों तरफ निगाह दौड़ाई और फिर सुबह रफ्तारी से चलती उसके सामने आई और बैठते ही बोली, पूछा, मैं लेट तो नहीं हो गई? नहीं, मैं अभी पहुंचा हूँ। खाना खाया हुआ है? हाँ, उसने इस बात में सर हिलाया। मैं भी खा के घर से निकली हूँ, बस चाय का बता दो। और दानियाल बैरे को चाय का बताकर उसकी जानिब मुतवज्जे हुआ। वो कहने लगी, दानी तुम्हें जहमत तो हुई होगी, और
दानियाल ने हंसते हुए कथा कलामी की। कोई जहमत नहीं हुई मैडम, तुम जैसी लड़की सदरे मुमलिकत को भी पुकारे तो वो सर के बल दौड़ा चला आएगा। एक मजदूर की क्या मजाल कि उसे ये जहमत लगे, उसके लिए तो ये खुश किस्मती की बात है। ये लड़की तो तुम्हें अपनाने के लिए तैयार है, बस इतनी चाहत दे देना जितनी मुस्कान पर निछावर करते हो। मुस्कान के जिक्र ने उसे उदास कर दिया था। पगली, दिल पर इख्तियार थोड़ी होता है, और बाकी ये हकीकत है कि मैं तुम्हारा मुलाजिम बनने के लायक भी नहीं हूँ। फरीहा मुंह बनाते हुए बोली, आप में किस चीज़ की कमी है? ना दौलत, ना शोहरत, ना नस्ब और ना सूरत। कौन सी चीज़ है मेरे पास? वो क्या कहते हैं, कम अज़ कम इतनी शक्ल और सूरत तो हो कि शोहर की कि बीवी उसे आंख भर के देख ही सके। वो निदामत से बोली, दानी, ये मेरे कहे अल्फाज हैं, और आप अच्छी तरह जानते हो ये अल्फाज सिर्फ गुस्से के इजहार के लिए मेरे मुंह से निकले थे, वरना आप में कोई ऐसी कमी नहीं है जिस पर एतराज़ किया जा सके। फरी, यकीन करो, जब तुमने ये अल्फाज कहे थे उस वक्त भी मुझे यकीन था कि तुम ये सब गुस्से में कह रही हो, और मैं हैरान भी था, क्योंकि मुझे बहुत आम शक्ल सूरत की लड़कियां तो मुझे दिल की गहराई से नापसंद करें, और तुम ऐसी हो शक्ल लड़की मेरी तारीफ ना करने को तो हीन जाने। अच्छा, पता है मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है? नहीं, उसने नफी में सर हिलाया। अगर मैं कहूँ तुम्हें सचमुच शादी की ऑफर करने आई हूँ, तो तुम्हारा क्या रद्द अमल होगा? कल तो मुझे धोखा देने आई थी, लेकिन आज तुम्हारे लहजे में खुलूस की झलक है। इसके बावजूद मुझे यकीन है कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है, और ना तुम हम्माद से ही मोहब्बत करती हो, वरना कभी मुझे शादी की ऑफर ना करती। वो अपनी शक्ल और सूरत की वजह से तुम्हें पसंद है, और मुझसे तुम्हें हमदर्दी हो गई है, जबकि मोहब्बत बिल्कुल अनोखा जज्बा है, मोहब्बत करने से नहीं होती। वरना जहाँ तक शक्ल और सूरत का ताल्लुक है, हकीकत तो ये है कि अगर मैं इस भरे पूरे होटल में ऐलान कर दूं कि इस लड़की से किससे शादी करनी है, तो मुझे यकीन है तुम्हें यहाँ पाने के लिए कत्लो गारत शुरू हो जाएगी, क्योंकि तुम बगैर किसी शक व शुबा के इस काबिल हो। हाँ, मोहब्बत तो वो होती है जो तुम्हें मुस्कान से है, पता नहीं वो क्या है। अच्छा, मैंने तुम्हें मोहतात रहने का मशवरा देने के लिए बुलाया था। अगर हो सके तो चंद दिन के लिए घर छोड़कर कहीं दाएं बाएं हो जाओ, और मुस्कान की फिक्र ना करना। अगर खुदा ने चाहा तो मैं उसे तुम्हारी जिंदगी में ले आऊंगी। इस वक्त उसकी आंखों पर किसी की झूठी मोहब्बत की पट्टी बंधी है। जब यह पट्टी उतर जाएगी तो उसे तुम्हारी तरफ आने से कोई नहीं रोक सकेगा। क्या सचमुच तुम ऐसा करोगी? दानियाल ने बेख्तियार उसका मुलायम हाथ थाम लिया। फरीहा संजीदा लहजे में बोली, हाँ, मेरी कोशिश होगी कि तुम्हें तुम्हारी मुस्कान मिल जाए, और मुझे मेरा हम्माद। फरी, मैंने कहा ना, मैं सच तो ये है कि तुम्हें हम्माद से मोहब्बत नहीं है। वो मुझे अच्छा लगता है, और मैंने खुद उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। हाँ, वो बहुत खूबसूरत है। दानियाल ने इस बात पे सर हिलाया। फरीहा ने इश्तियाक से पूछा, क्या तुम्हें मेरा हम्माद से मिलना पसंद नहीं है? नहीं, बस ये दुआ करता हूँ कि तुम्हें कोई ऐसा मिले जो तुम्हें बहुत ज्यादा मोहब्बत और तवज्जो दे, तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखे। फरीहा मुस्कुराई। बड़ी दुआएं दी जा रही हैं। मुस्कान से मिलने की उम्मीद दिलाई है इसलिए? नहीं, तुमने मुझे बहुत बड़ा मान दिया है। तुम्हारे चेहरे पर सजा नकाब देखकर मेरा सीना फखर से चौड़ा हो गया है। और इतना कहकर वो खामोश हो गया। और क्या? वो बेसब्री से मुस्तफसिर हुई। फरी, कल तुमने मेरे हाथ को बोसा दिया था, याद रखना। उस बोसे में शामिल खुलूस ने मुझे हमेशा के लिए तुम्हारा मकरूज कर दिया है। अगर मुझे मिशी की बीमारी लाहक ना होती तो यकीनन मैं सारी जिंदगी तुम्हारा गुलाम बनकर जीना भी गवारा कर लेता। अलबत्ता ये वादा करता हूँ कि मेरी जान के बदले भी तुम्हारी कोई ज़रूरत पूरी हो सके तो मुझे बेझिझक आवाज़ दे देना। पता है, कल मैंने अपनी गुर्बत और मुस्कान की ऑफर के बारे में जो कुछ कहा था वो झूठ था। हाँ, जानता हूँ फरी, तुम ना गरीब हो और ना अमीर, बस मुतवसत खानदान से ताल्लुक़ रखती हो। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, तुम्हें इस काम के लिए हम्माद ने भेजा है। उसे अपनी महबूबा को यूँ किसी गैर मर्द के पास नहीं भेजना चाहिए था। फरीहा फ़ख्र से बोली, उसे मुझ पर एतमाद है। नहीं, उसे तुमसे मोहब्बत नहीं है इसलिए। ये बात तुम इतने वसूख से कैसे कह सकते हो? क्योंकि मैं अपनी मिशी को कभी किसी गैर मर्द के पास ना भेजता। तुम मोहब्बत की कसौटी तो नहीं हो, तुम्हें अपनी मिशी पर एतमाद ना सही, उसे तो है। चंद लम्हे सोचने के बाद वो उस बात में सर हिलाते हुए बोला, शायद तुम सही कह रही हो। फरीहा के चेहरे पर अजीब से तासुरात उभरे। दानियाल एक मर्तबा फिर उसे परेशान करने में कामयाब रहा था। उसने दानियाल की मोहब्बत पर जानबूझकर तानाजनी की थी ताकि वो ये बात कह सके कि फरीहा हमाद के एतमाद पर पूरी नहीं उतरी और उससे मोहब्बत जताने लगी, मगर उसके बजाय उसे शिकस्त कबूल करने में आफियत जानी और फरीहा को शर्मिंदा करने के बजाय अपनी तजलील गवारा कर ली थी। मेरा ख्याल है तुम्हारे दिल में कुछ और है, वो पूछे बिना ना रह सकी। नहीं, उसने नफी में सर हिलाया।
तुम बहुत अच्छी हो फरीहा। मुझसे हमदर्दी का मतलब ये नहीं कि तुमने हम्माद के एतमाद को ठेस पहुंचाई है। ये तो फकत तुम्हारे हमदर्द दिल की कारस्तानी है। मैं तुम्हें शादी की ऑफर भी कर चुकी हूँ। फरीहा उसे झुठलाने पर तुली थी। इसमें हम्माद के रवैये का गहरा अमल दखल है। यकीनन वो तुम्हें वो अहमियत नहीं दे सका जिसकी तुम हकदार हो, और तुमने मुझे वो अहमियत दी है। यही कहना चाहते हो ना? फरीहा ने बज़ाहिर तंजिया लहजे में कहा। उसने नफी में सर हिलाया। मिशी के अलावा मैं किसी को अहमियत दे ही नहीं सकता। उसमें कौन से सुरखाब के पर लगे हैं? फरीहा सचमुच बिफर गई। दानियाल ने मुस्कुराते हुए उसका मुलायम हाथ थामा। फरी, तुम बहुत अच्छी हो। और फरीहा बेसाहता हंस पड़ी थी। वो एकदम संजीदा हो गया। फरी, मेरी एक बात मानोगी? कहो। खुदारा किसी से मोहब्बत ना करना, किसी भी शख्स को अपने दिल में जगह ना देना कि उसके ना होने से तुम्हें मौत जिंदगी के बराबर लगे। हमें चलना चाहिए। फरीहा उस काले जादूगर से डर गई थी। हाँ चलो। वो उठकर काउंटर की तरफ बढ़ गया। फरीहा जानती थी कि वो गरीब है, मगर उसके साथ उसे ये भी इल्म था कि वो कभी भी ये गवारा नहीं करेगा कि फरीहा बिल अदा करे। फरीहा उसके बारे इतना कुछ कैसे जान गई थी? इस बारे वो खुद भी हैरान थी। बहुत सी बातें जो वो उसके बारे में सोचती, वो वैसे ही परेशान था, वैसे ही करता था। फरीहा को यकीन था कि वो उससे हर बात मनवा सकती है। और फिर हैरानी की बात यह थी कि उसे कभी भी उसकी आंखों में किसी गलत जज्बे को उभरते नहीं देखा था। हालांकि ये जज्बे वो कई मर्तबा हम्माद की आंखों में भी सरसराते देख चुकी थी। वो वाकई एक सच्चा और खरा शख्स था, और इस काबिल था कि उससे मोहब्बत की जा सके। फरीहा को महसूस हुआ कि उसे किसी ऐसे शख्स ही की तलाश थी, मगर मुस्कान बाजी ले गई थी। उसे याद आया पहली मर्तबा जब दानियाल ने उसे देखा तो कैसे घबरा गया था। उसके अल्फाज आज भी फरीहा की याददाश्त में जिंदा थे। उसने गड़बड़ा कर कहा था, साहब ये तो बहुत खूबसूरत है, ये मुझे कबूल कर लेगी? हाँ, उस वक्त उसके दिल में मुस्कान का कब्जा नहीं था। उस वक्त अगर मैं इसे कबूल कर लेती तो यकीनन आज उसकी मलिका होती। मगर क्या ये हम्माद से अच्छा है? मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ? चलें। दानियाल ने करीब आकर उसे ख्यालों की दुनिया से निकाला, और वो सर हिलाते हुए उसके हमराह हो ली। बस में बैठे उसका दिमाग मुख्तलिफ किस्म की सोचों का आमाजगाह बना हुआ था। वो अपनी बदसूरती से अच्छी तरह वाकिफ था, इसलिए फरीहा का रवैया उसके लिए बहुत ताज्जुब अंगेज और हैरान कुन था। पहली मुलाकात के बरक्स वो बहुत बदली बदली लग रही थी। एक ऐसी लड़की जिस पर बगैर किसी अंदेशे के एतमाद किया जा सके, जिसे अपना समझा जा सके, जो बहुत मुखलिस हो, जिसे हर बात मनवाई जा सके। जब वो अपनी शक्लो सूरत और गुर्बत पर गौर करता तो उसे ये सब एक सुहाने ख्वाब से बढ़कर न लगता। मुस्कान से शादी से पहले वो किसी आम शक्लो सूरत की लड़की से भी शादी करने के लिए तैयार था, लेकिन अब उसके दिल और दिमाग में ऐसी तब्दीली आई थी कि मुस्कान के अलावा कोई सोचता ही नहीं था। वरना फरीहा जैसी लड़की की ऑफर को ठुकराना कुफराने नेमत ही तो था। उसने सोचा, अगर मैं फरीहा से शादी कर लूं तो शायद उसकी सहर अंगेज गुर्बत मुस्कान की यादों से पीछा छुड़ाने में मददगार साबित हो। उसकी इस सोच के साथ उसकी बाएं जानिब की पसलियों के नीचे एक टीस सी उठी। उसे अपनी मिशी की हल्की सी सरगोशी सुनाई दी। दानी, मैं अभी तक यहीं मौजूद हूँ, और याद रखना यहीं रहूंगी। पगले, ये तो आजमाइश है। चाहने वालों को आजमाया नहीं जाता क्या? क्या तुम अपनी मिशी को मायूस करोगे? याद करो, जब कोई भी लड़की तुम्हें मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं थी, उस वक्त मैंने अपना सब कुछ तुम्हें सौंप दिया था। आज तुम एक खूबसूरत लड़की को अपनी मिशी की जगह दे दोगे? भूल गए क्या कहा था कि तुम्हें मिशी के बदले कोई और भी नहीं चाहिए? वक्त आने पर एक ही लड़की को नहीं ठुकरा सके। नहीं मिशी, ये झूठ है। मुझे किसी की जरूरत नहीं, किसी की भी, किसी की भी। उसकी वाज़ेह बुड़बुड़ाहट सुनकर उसके साथ बैठे उधेड़ उम्र के आदमी ने पूछा, बेटा मुझे कुछ कहा है? नहीं चचा। वो गड़बड़ा गया, और वो आदमी उसे अजीब सी नजरों से देखते हुए चुप हो गया। अपने स्टॉप पर उतरकर वो घर की जानिब बढ़ गया। उसे अच्छी खासी थकन महसूस हो रही थी। 2 माह का आराम उसे रास नहीं आया था। स्टॉप से उसके घर तक का फासला भी 2-3 फरलांग से ज्यादा बच जाता था। वो जैसे ही अपनी गली में मुड़ा, 3 आदमी उसे अपने घर के सामने खड़े दिखाई दिए। वो यूं दरवाजे के सामने खड़े थे जैसे किसी का इंतजार कर रहे हों। उसे करीब आता देखकर वो उसकी तरफ मुतवज्जे हो गई। इससे पहले कि वो उनसे वहां खड़ा होने के की बाबत इस्तफसार करता, उनमें से एक आदमी ने पूछा, तुम्हारा नाम दानियाल है? जी जनाब। दानियाल ने मुसाफे के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। वो उसके मुसाफे के लिए बढ़ाए गए हाथ को नजरअंदाज करता हुआ नखुवत से बोला, तो मिस्टर हबशी, सुना है कि तुम इश्क माशूकी के चक्करों में पड़े हो? उसके बदतमीजाना अंदाज पर एक लम्हे के लिए दानियाल का दिमाग घूमा, मगर फिर उसने खुद पर काबू पाते हुए तहम्मुल से जवाब दिया, शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। ये तलाकनामा साइन करके तुम हमारी गलतफहमी दूर कर सकते हो। उसने जेब से एक फॉर्म निकालकर दानियाल की जानिब बढ़ाया। तलाकनामा? उसकी हैरानी दो चंद हो गई थी।
हाँ, तलाकनामा। तुम मुस्कान बीबी को बकाए में होशो हवास तलाक दे रहे हो, वरना दूसरी सूरत में तुम्हारे होशो हवास जगह पर नहीं रहेंगे। एक लम्हे में उस पर सारी हकीकत वाज़ेह हो गई। मुस्कान तलाक लेने के लिए ऊँचे हथकंडों पर उतर आई थी और ज़रूर इस बात की सुनगुन फरीहा को भी मिल गई थी। इसी वजह से वो मुखलिस लड़की उससे पहले से खबरदार करने आई थी, मगर शायद अब उसे देर हो गई थी। मेरा ख़्याल है अपनी ज़िंदगी के बारे में फ़ैसला करने का हक़ मुझे हासिल है और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि अपनी बीवी को तलाक देनी चाहिए या नहीं। और मेरा ये ईमान है कि लातों के भूत बातों से नहीं माना करते। उसने दानियाल का गिरेबान पकड़ा और उसके साथ मौजूद दोनों आदमी एकदम दानियाल से लिपट गए। वो सख्त जान होने के बावजूद अकेला था। एक मारता और 3 उसे खानी पड़ती। शोर की आवाज़ सुनकर आयशा बाहर निकली। नामुरादो, क्यों मेरे मासूम बेटे को मार रहे हो? वो दानियाल से लिपटे हुए गुंडों में से एक का बाजू पकड़कर चिल्लाई, मगर उसके हाथ झटकने पर लहराते हुए दूर जा गिरी थी। माँ को गिरते देखकर दानियाल होशो हवास खो बैठा था। उसने एक जोरदार टक्कर सामने वाले की नाक पर रसीद की और वो हाय के साथ नीचे बैठ गया। उसकी नाक से खून का फवारा छूट पड़ा था। बाकी दोनों ने गुत्थम गुत्था होकर उसे नीचे गिराया और उसे ठुड्डे मारने लगे। इसी वक्त पुलिस की जीप वहां आकर रुकी। इंस्पेक्टर ने नीचे उतरकर दबंग लहजे में पूछा, क्या हो रहा है यहाँ? वो दानियाल को छोड़कर जल्दी से पीछे हुए और उनका सरगना जल्दी से बोला, थानेदार साहब, ये गुंडा हमें जुदोकोप कर रहा था। क्यों बे, तू बड़ा बदमाश आया है इस मोहल्ले में कि कमजोरों पर हाथ उठाता है? इंस्पेक्टर का मुखातिब दानियाल था। जनाब, मैं तो इन्हें जानता ही नहीं। अभी काम से लौटा हूँ। ये पहले से मेरे घर के सामने खड़े थे और मेरे यहाँ आते ही झगड़ने लगे। दानियाल ने असल सूरत हाल तफसील से बतलाई। झूठ कहता है सर। देखिए, इसने मेरे साथी की नाक तोड़ दी और अब मजलूम बन रहा है। सरगना ने एक मरतबा फिर वावेला किया। चलो, इस बात का फैसला थाने में होगा। इंस्पेक्टर ने सिपाहियों को इशारा किया कि वो दानियाल को गिरफ्तार कर लें। थानेदार साहब, मैं बेगुनाह हूँ। दानियाल थाने का नाम सुनकर घबरा गया था। मार कुटाई तो उन्होंने शुरू की थी। मैंने तो फकत अपने दिफा में हाथ उठाया है। इसी वक्त आयशा ने आगे बढ़कर इंस्पेक्टर से कहा, थानेदार बेटा, मेरा पुत्र बेगुनाह है। ये तीनों मुस्टंडे इसे मार रहे थे। आप इन्हें गिरफ्तार करें। तुम फिक्र ना करो माई, अगर ये बेगुनाह हुआ तो इसे छोड़ दिया जाएगा। ये कहकर वो जीप में बैठ गया। दानियाल को सिपाही पहले से जीप में बिठा चुके थे, जबकि तीनों गुंडे अपनी मर्जी से जीप में घुसकर बैठ गए थे। जीप के जाने तक आयशा इंस्पेक्टर की मिन्नतें करती रही, मगर उसका दिल न पसीजा। दानियाल पुलिस की मुस्तैदी पर हैरान था। पुलिस तो जुर्म होने के दूसरे दिन भी जाए वकुआ पर नहीं पहुंच पाती थी, तो जाने आज कैसे लम्हों में पहुंच गई थी। और फिर गुंडों की बजाय पुलिस ने उसे क्यों गिरफ्तार कर लिया था? आयशा को लग रहा था कि जैसे सारी दुनिया अंधेर हो गई हो। दानियाल उसका इकलौता बेटा, उसकी आंखों का तारा और जीने का सहारा था। पुलिस स्टेशन का नाम ही गरीब को लर्जा देता है। उसके तो सामने उसके इकलौते बेटे को पुलिस पकड़ कर ले गई थी। उसे महसूस हो रहा था कि उसका दिल बंद ही हो जाएगा। पानी के 2-3 गिलास पीकर उसने खुद को संभाला दिया और फिर इस मुसीबत को टालने के बारे जहन के घोड़े दौड़ाने लगी। मोहल्ले में कोई ऐसा मतमूल शख्स मौजूद नहीं था जो दानियाल को थाने से रिहाई दिला सकता। एक दफा उसके जी में आया कि वो थाने जाकर बड़े साहब की मिन्नत समाजत करे। शायद वो उस पर तरस खा ले, मगर उसके साथ उसे ये ख्याल आया कि उसे तो पता ही नहीं वो दानियाल को किस थाने में लेकर गए हैं। वो किस किस थाने में जाकर दुहाई देती। कराची के थानों की खाक छानते तो शायद उसकी उम्र बीत जाती। आखिरकार उसकी सोच मुस्कान की जात पर ठहर गई। वही उसके बेटे को थाने से वापस ला सकती थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि वो एक मतमूल घराने से ताल्लुक रखती है। उन्हें छोड़ते वक़्त उसने जिस बेरुखी से आयशा को मुख़ातिब किया था, वो उसे अब तक भूला नहीं था, लेकिन ये भी हकीकत थी कि वो आज भी उसे पहले दिन की तरह अज़ीज़ और प्यारी थी। अगर वो उनके साथ राब्ता नहीं रखना चाहती थी, तो ये उसकी अपनी मर्ज़ी थी। माँ-बेटे के दिल के दरवाज़े तो उसके लिए खुले थे। मुस्कान दानियाल की मोहब्बत थी, तो उसे भी सगी बेटी की तरह प्यारी थी। उन्हें छोड़ जाने के बाद भी वो उसकी दुआओं में पहले की तरह मौजूद थी। मुस्कान का मोबाइल नंबर उसके अपने मोबाइल फ़ोन में था दर्ज था। मोबाइल फ़ोन उठाकर वो धड़कते दिल से मुस्कान का नंबर मिलाने लगी। मुस्कान ने असर की नमाज़ पढ़कर जाए-नमाज़ ही पर बैठी थी कि उसके सेल फ़ोन की घंटी बजने लगी। वो बेदिली से फ़ोन की तरफ भड़ गई। मोबाइल स्क्रीन पर दानियाल की माँ का नाम चमकता देखकर उसके दिल की धड़कन तेज़ हुई। आंटी, आप छोड़ें, ये हमारा ज़ाती मामला है। उसके ज़हन में अपनी आवाज़ गूंजी। उससे कॉल रिसीव ना करना मुनासिब समझा, मगर फिर उसे ख़्याल आया कि हो सकता है वो किसी मुश्किल में हो। जी, अटेंडिंग बटन प्रेस करते हुए उसके मुँह से बदिक्कत तमाम निकला। वो अम्मी जान कहते-कहते रुक गई थी। बेगम साहिबा,
میرے بیٹے کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے، خدارا اسے بچا لے، وہ بالکل بے قصور ہے۔ عائشہ کے منہ سے بیگم صاحبہ کا لفظ اس پر گھڑوں پانی ڈال گیا تھا، مگر اس وقت کمزوری دکھانا اسے مناسب نہ لگا۔ اس نے حت الوسع نارمل انداز میں پوچھا، پولیس انہیں کس وقت اور کیوں پکڑ کر لے گئی ہے؟ عائشہ گلوگیر لہجے میں بولی، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی پکڑ کر تھانے لے گئی ہے۔ وہ بالکل بے قصور ہے، 3 گنڈے اسے مار رہے تھے، پولیس نے آ کر گنڈوں کے بجائے میرے بیٹے کو گرفتار کر لیا۔ جھگڑا کس بات پر ہوا اور پولیس کو کس نے بلایا تھا؟ پولیس کو کسی نے بھی نہیں بلایا، خود بخود یہاں پہنچ گئی تھی اور آتے ہی دانیال کو پکڑ لیا، حالانکہ وہ تینوں گنڈے اسے مار رہے تھے۔ انہیں پولیس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ کچھ معلوم ہے کہ انہیں کس تھانے میں لے کے گئے ہیں؟ مسکان کے منہ سے لاشعوری طور پر دانیال کے لیے اس کے بجائے ان نکل رہا تھا۔ نہیں بیگم صاحبہ۔ اچھا ٹھیک ہے، میں معلوم کر لیتی ہوں، آپ فکر نہ کریں، انہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ آپ کو اجر دے بیگم صاحبہ۔ عائشہ نے دل کی گہرائیوں سے دعا دی۔ مسکان نے رابطہ منقطع کر دیا۔ عائشہ کی باتوں پر اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ اسے بیٹی کہنے والی آج بیگم صاحبہ کے لقب سے نواز رہی تھی، اور اس میں سارا قصور اس کا اپنا تھا۔ ان تلخ سوچوں کو دماغ سے نکال کر وہ حماد کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ اسے شک تھا کہ اس کارروائی میں حماد کا ہاتھ ہو سکتا تھا۔ یس، پہلی بیل پر کال اٹینڈ کر لی گئی تھی۔ کہاں ہو؟ اب تک گھر نہیں آئے؟ ذرا مصروف ہوں، ڈنر پر ملاقات ہوگی۔ اچھا ایک بات پوچھنا ہے آپ سے۔ جی؟ دانیال کو آپ کی احمد پر پولیس گرفتار کر کے لے گئی ہے؟ ہاں، ایسے لوگ ڈنڈے ہی کو پیر مانتے ہیں، اب دیکھنا کیسے طلاق دیتا ہے۔ اچانک وہ چونکتے ہوئے بولا، مگر تمہیں کس نے خبر دی؟ اس کی ماں نے کال کی تھی، سخت پریشان تھی حماد، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو کیا کروں، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤں؟ وہ حبشی کسی طریقے سے نہیں مان رہا، کوئی اور طریقہ نہیں ہے کیا؟ ہے، عدم آباد کی ٹکٹ کٹوا دیتا ہوں سالے کی، حماد زہر خند لہجے میں بولا۔ اچھا کس وقت رہائی ملے گی اسے؟ مسکان کو بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ صبح تک چھوڑ دیں گے۔ کس تھانے میں بند ہے؟ جواباً حماد نے اسے تھانے کے متعلق بتایا اور کال منقطع کر دی۔ وہ عائشہ کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ جی بیگم صاحبہ، اسے کال ریسیو کرنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ میں نے بات کر لی ہے، انشاءاللہ صبح تک وہ واپس آ جائیں گے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ اللہ پاک تمہیں خوش رکھے، خوشیاں دے، نیک اولاد۔ ایک دم عائشہ خاموش ہو گئی۔ مسکان کو بھی عجیب سا محسوس ہوا تھا اور اسے رابطہ منقطع کرنے میں عافیت سمجھی۔ دل میں چھپا چور اسے عائشہ کا سامنا کرنے نہیں دے رہا تھا۔ وہ بے چین ہو کر ٹہلنے لگی۔ اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے ایک دم کون سی پریشانی لاحق ہو گئی ہے۔ شاید دانیال کا بے گناہ تھانے میں قید ہونا میرے ضمیر کو جھنجھوڑ رہا ہے، اسے خود کلامی کی۔ ہاں ضرور یہی بات ہے۔ کیا پولیس اسے ڈرا دھمکا کے طلاق لے گی؟ مگر یوں تو اسے طلاق نہیں دینا، شاید زد و کوب کر کے زبردستی اس بات پر مجبور کرے۔ کیا زبردستی طلاق ہو جائے گی؟ ایک نئی سوچ اس کے دماغ میں ابھری اور وہ یہ جاننے کے لیے مفتی صاحب کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ السلام علیکم۔ مفتی صاحب نے کال اٹینڈ کی۔ مفتی صاحب، ایک مسئلہ دریافت کرنا تھا۔ جی پوچھیں۔ اگر پولیس والے کسی آدمی کو مار پیٹ کر یا ڈرا دھمکا کر مجبور کریں کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو کیا اس طرح طلاق ہو جائے گی؟ ہاں، اگر اس آدمی نے طلاق دے دی تو ہو جائے گی، چاہے وہ طلاق نہ دینا چاہتا ہو۔ ہاں، چاہے وہ نہ چاہتا ہو، اگر کسی دباؤ میں آ کر یا جان کے خوف سے وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ یہ تو ایک غریب کے ساتھ زیادتی ہے، جانے کیوں مسکان دکھی ہو گئی تھی۔ ہاں بیٹی، زیادتی تو ہے، اور ایسا کرنے والوں پر اللہ پاک کا عذاب ضرور نازل ہوگا، مگر وہ غریب تو اپنی بیوی سے محروم ہو گیا نا۔ مسکان کا دل رونے کو کرنے لگا تھا۔ لوگ بے گناہ ہو کر بھی جان سے محروم ہو جاتے ہیں، آپ بیوی کی بات کر رہی ہیں، جیسے مقتول مرنا نہیں چاہتا مگر ظالم کا ظلم اسے مرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اسی پر مذکورہ مسئلے کو قیاس کر لو۔ مسکان نے دعائیہ کلمات کہتے ہوئے موبائل فون بند کر دیا۔ رات کو دیکھے خواب کے مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ دانیال کے کہے الفاظ اسے نہیں بھولے تھے۔ مشی، آج تک میں یہی سمجھتا رہا کہ تم اوپری دل سے طلاق مانگ رہی ہو، معاف کرنا، مجھے پتہ نہیں تھا تم سنجیدہ ہو۔ اب تمہیں مایوس نہیں کروں گا، زیادہ سے زیادہ مر ہی جاؤں گا نا۔ صوفے پر ٹیک لگا کر بیٹھتے ہوئے اسے آنکھیں بند کر لی۔ اسے اب یقین ہو گیا تھا کہ اسے طلاق مل جائے گی۔ دانیال کی غمزدہ صورت اس کے تصور میں لہرائی۔ دانی، میں شرمندہ ہوں، میں نے تمہیں صرف دکھ دیے ہیں، مگر کیا کروں، میں مجبور ہوں، میں بھی کسی کے وعدوں کے جال میں جکڑی ہوئی ہوں۔ میرا بھی کوئی محبوب ہے، میں جانتی ہوں تم مجھے بہت چاہتے ہو، اور یقین کرو تمہاری یہ چاہت ہمیشہ میرے دل میں سنہری یادوں کی صورت زندہ رہے گی۔ بے شک تم مجھے برا سمجھنا، بے وفا کہنا، مجھ سے نفرت کرنا، یہ تمہارا حق ہے، لیکن خدارا مجھے بددعا نہ دینا۔ میں تمہارے ساتھ زیادتی کی مرتکب ہوئی ہوں۔ ازالے کے طور پر میں نے تمہیں دنیاوی آسائشیں دینے کی کوشش کی، مگر وہ بھی تم نے میرے منہ پر تمانچے کی طرح مار کر میرے احساس گناہ کو بڑھا دیا ہے۔
दानी तुम बहुत अच्छी हो, बहुत ज़्यादा। मैं मुस्कान हूँ, मैं तुम्हारी मिशी बनने के काबिल नहीं हूँ, मुझे माफ़ कर देना। आंखों से बहते नमकीन पानी ने उसके होठों से लगकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। तपाई पर रखा पर्स खोलने पर उसे दानियाल का दिया रुमाल नजर आया। उसकी समातों में दानियाल के चाहत भरे अल्फाज गूंजे। पता है ना ये किन किन मौके पर इस्तेमाल होता है? आंसू पोंछने के लिए। और मैं भी आपको यही बावर कराना चाहता हूँ कि जिंदगी के किसी भी मौका पर अल्लाह ना करे अगर आपकी आंख से आंसू का कतरा निकला तो मैं इस रुमाल की जगह ले लूंगा। अशकों की रवानी में इजाफा हुआ और दानियाल रुमाल की शक्ल में अपना वादा निभाने लगा। हम्माद से उसकी मुलाकात खाने की मेज़ पर हो सकी थी। वो काफ़ी मुतमईन और खुश दिखाई दे रहा था। बेगम साहिबा आज बुझी-बुझी नज़र आ रही हो, उसे देखते ही मुस्कान की परेशानी भाँप ली थी। हाँ, हम्माद, जाने-अनजाने में हमसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। औलाद के हसूल की ख़्वाहिश में अंधे होकर हमने एक गरीब की ज़िंदगी में ज़हर घोल दिया है और आज वो नाकर्दा जुर्म की सज़ा पाने थाने में बंद है। उसकी माँ घर में तड़प रही है। क्या बिगाड़ा था उन गरीबों ने हमारा? मुस्कान की आँखें नम हो गई थीं। मुस्कान, पागल मत बनो। हम्माद ने उसे झिड़का। उसे थाने में कुछ नहीं कहा जाएगा। बस थोड़ा बहुत डरा धमकाकर तलाकनामे पर साइन ले लिए जाएंगे और फिर उसे रिहा कर देंगे। बाकी इन गरीबों को हमने गुर्बत की जिंदगी से निकालना चाहा था। अगर वो खुद ही अपने हाल में मस्त रहना चाहे तो इसमें हमारा क्या कसूर? हम्माद, हमें शादी से पहले सारी सूरत हाल उसके सामने रख देना चाहिए थी। देखो मुस्कान, दिल पर मत लो, ये इतनी बड़ी बात नहीं है और हमारे इस रद्द-ए-अमल का ज़िम्मेदार वो खुद है। अगर वो आसानी से तलाक दे देता तो क्या हम उसे तंग करते? तुमने भी उसकी कितनी मिन्नतें की थी। जब एक औरत उसके साथ रहना नहीं चाहती थी तो उसे क्यों तलाक नहीं दे रहा था? क्या औरत को हक नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुज़ारने का? और फिर तुमने उस पर नवाज़िशों की बारिश कर दी। उसके बावजूद वो उसी हठधर्मी पर कायम रहा। हालाँकि कार, मकान, कारोबार ये ऐसी आसाइशें हैं जिनके ख्वाब तो निचले तबके के लोग देखते हैं, ताबीर कभी नहीं पा सकते। हम्माद की चर्ब ज़ुबानी से उसकी परागंदा सोचों को थोड़ा-सा आराम मिला था, मगर उसके बावजूद वो ठीक तरह से खाना नहीं खा सकी थी। और एक बात अच्छी तरह ज़हन-नशीन कर लो, अगर तुम ये समझती हो कि वो हबशी तुम्हारी चाहत में डूब कर ऐसा कर रहा है, तो ये तुम्हारी गलतफ़हमी है। उस खबीस को कहीं से सुन-गुन मिल गई है कि तुम एक सेठज़ादी हो और अब वो छोटे फ़ायदे के बजाय बड़ा फ़ायदा उठाना चाहता है। मुस्कान का जी चाहा कि वो हम्माद की बात को सख्ती से झुठला दे, मगर फिर उसे हया आड़े आ गई। वो हम्माद को कैसे यकीन दिला सकती थी कि दानियाल की मोहब्बत में कोई खोट नहीं था। वो बिलाशुबा अपनी मिशी के लिए हफ्ते अकलीम की दौलत को भी ठुकरा सकता था, वरना देखा जाता तो जितना कुछ मुस्कान ने उसे दिया था उसे ठुकराना किसी गरीब के बस की बात नहीं थी। अगर वो ज़्यादा का लालच रखता तो अपना मुतालबा ज़रूर पेश करता। उसके अलावा ये बात भी किसी वजाहत की मोहताज नहीं थी कि मुस्कान की दौलतमंदी के बारे मालूम होने के बाद वो कैसे उस दौलत पर कब्जा बनाने का मंसूबा बना सकता था। जबकि मुस्कान अदालत से खुला लेने का इख्तियार रखती थी। अगर वो अदालत में चली जाती तो इस सूरत में उसके पास क्या बचता? गो वो खुला के लिए कभी भी अदालत का दरवाज़ा ना खटखटाती, मगर इस बारी दानियाल तो लाइल्म था ना। उसे ये कहा मालूम था कि मुस्कान इस ज़मन में अदालत नहीं जा सकती है, मगर मुस्कान ये सब ना कह सकी और बात बनाते हुए बोली, हम्माद, मैंने कब कहा है कि वो मुझे चाहता है या ये कि मुझे उसकी चाहत की ज़रूरत है? मैं तो बस इस बात पर दुखी हूँ कि मैंने उसे धोखा दिया है। काश मैंने ये ना किया होता। मैंने भी ये बात नहीं कही है मेरी जान। हम्माद ने चापलूसी से उसकी तायद की। अच्छा, मेरा सर दर्द कर रहा है और मैं सोने जा रही हूँ। वो खड़ी हो गई। कोई टैबलेट ले लेना थी। हमाद के लहजे में हमदर्दी थी, मगर वो फीकी हमदर्दी मुस्कान को बहुत बुरी लगी। उसकी बात का जवाब दिए बगैर वो अपनी ख्वाबगाह में घुस आई। दानियाल को भी उससे एक दफ़ा कहा था कि मेरा सर दर्द कर रहा है। वो दीवाना इतना परेशान हो गया था कि मुस्कान का दिल इस गलत बयानी पर निदामत से भर गया था। उसकी हर अदा से मुस्कान के लिए यूं ही खुलूस और चाहत झलकती थी, जाने क्यों वो उसकी अदाएं नहीं भूलती। वो खुद कलामी के अंदाज में बुड़बुड़ाई, क्या उस काले जादूगर के सहर का कोई तोड़ नहीं है? उसने तो मुझे अपने हमवार से भी दिली तौर पर दूर कर दिया है। बेड पर लेटकर उसने आंखें बंद कर लीं, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसके तलाक लेने की कोशिशों पर दानियाल का हर बार इनकार करना उसके दिल को तकवीत देता था। ऐनुल यकीन को हकुल यकीन बनाता था कि उसका मजनू हाली दावों वाला नहीं, जान देने वाला है। मगर अब अखीर हो गई थी। वो कभी भी पुलिस के तशद्दुद का सामना ना कर सकता और उसे अपनी प्यारी मिशी को तलाक देनी पड़ जाती। उसके दिमाग में सोच उभरी, जब मैं खुद तलाक लेना चाहती हूँ तो फिर परेशानी कैसी? परेशान तो नहीं हूँ, ये तो ज़मीर की सरज़निश है कि मैंने एक सीधे-साधे बंदे को धोखा दिया। उसके इश्क में थोड़ी मुब्तला हूँ कि मुझे परेशानी होगी। उसने खुद को दिलासा दिया और फिर एक मुहिब से उसकी मोहब्बत दूर करने की मुजरिम भी तो हूँ।
अच्छा, तलाक लेने के बाद उसकी माँ को इस बात पर राज़ी करूँगी कि वो मेरी माशी मदद कबूल कर लें। इस उम्मीद इफ़्ज़ा सोच ने उसके दुःख को किसी हद तक कम कर दिया था। वो अपने गुनाह के कफ़ारे के बारे में सोच के घोड़े दौड़ाने लगी। काफ़ी देर तक वो जागती रही। जब फिर भी नींद की देवी मेहरबान ना हुई तो उसे बुलाने के लिए नींद की गोलियों की रिश्वत देना पड़ गई। मुस्कान के वहां से जाते ही हम्माद ने भी अपने बेडरूम का रुख किया। दानियाल को पुलिस के हाथों ने गिरफ्तार कराया था। तीनों गुंडों और पुलिस ने एक तयशुदा मंसूबे के मुताबिक दानियाल को घेरा और उनकी मिली भगत से वो इस वक्त हवालात के अंदर बंद था। थानेदार ने 1 लाख की रकम वसूल करते हुए उसे सुबह तक तलाकनामा साइन हो जाने की खुशखबरी सुनाने का वादा किया था। गुंडों को तो उसे ये इख्तियार भी दिया था कि अगर वो रकम लेकर मान जाए तो ज्यादा बेहतर है, और रकम की मिकदार उसे लाखों में बताई थी ताकि किसी तरह वो हबशी मान ले। यूं भी मतलूबा रकम वो दानियाल को दिए गए मकान, कार और दुकान को बेचकर हासिल कर लेता, और उसका फ़ायदा ये होता कि मुस्कान के सामने वो दानियाल का घटियापन ज़ाहिर कर देता, वरना इतना बेवकूफ़ वो भी नहीं था कि मुस्कान के दिल में उसके लिए छुपी हमदर्दी ना पहचान पाता। और आज उसके थाने में जाने की खबर पर जिस तरह उसने परेशानी का इज़हार किया था, उसने उसके दिल में अनजाने अंदेशे भर दिए थे। ऐसे अंदेशे जिनकी तवज्जो से वो कासिर था। दानियाल का टनटना जितनी जल्दी ख़त्म हो जाता उतना बेहतर था। मोबाइल निकाल कर उसने फ़रीहा का नंबर मिलाया ताकि उसे ताज़ा सूरत-ए-हाल से आगाह कर सके। जी जनाब, उसके कानों में फ़रीहा की शीरीं आवाज़ ने रस उंडेला। कांग्रेचुलेशंस, मुबारक हो फरी। किस चीज़ की मुबारकबाद जी? उसने हैरानी से पूछा। कल तक सेठज़ादी बेवा मुतल्लका हो जाएगी। मगर कैसे? फरीहा ने बेसब्री से पूछा। वो जोशो खरोश से उसे तफसील बताने लगा। सारी कहानी सुनकर फरीहा ने किसी किस्म के तबसरे से गुरेज किया था। तुम्हें खुशी नहीं हुई? खुशी उस दिन होगी जब तुम कहोगे कि आज से तुम फकत मेरे हो। इसमें शक ही क्या है? मैं तो हमेशा से तुम्हारा हूँ। फिर मुस्कान के पास क्या कर रहे हो? मेरे पास आओ ना। देखो कि मेरी रातें तुम बिन कितनी सूनी और वीरान हैं। फरी मेरी जान, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। वो उसे समझाने लगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं थूकती हूँ इस दौलत पर। हम्माद, यकीन करो, दौलत से खुशी नहीं मिलती। अगर दौलत खुशी दे सकती तो वो काला कभी दौलत को ठोकर ना मारता। उसे अपनी मुस्कान से मोहब्बत है, और इस मोहब्बत की खातिर उसने थाने जाना भी कबूल कर लिया है। और याद रखना, पुलिस तशद्दुद के जरिए भी उसे मजबूर नहीं कर सकेगी। मुझे भी तुमसे ऐसी ही मोहब्बत दरकार है। पहले मैं वक्ती तौर पर बहक गई थी। अब 2-3 दिनों से मैं ऐसी कशमकश में हूँ कि मुझे क्या चाहिए। बहुत सोचा, बहुत दिमागी वर्जिश की, अपने दिल को टिटोला और इस नतीजे पर पहुँची। एक छोटा-सा घर, चाहने वाला शौहर और खाने को जो भी रूखी-सूखी मिल जाए। फरी, तुम मुझे खिसकी हुई लगती हो। ये सब कुछ हमने मिलकर तय किया था। इसी वजह से मैंने शादी की, इसी वजह से तुमसे दूरी बर्दाश्त की। और आज जब मेरी बोई फ़सल पक कर कटने के लिए तैयार हो गई है, तो तुम मशवरा दे रही हो सब कुछ छोड़ दूँ? हाँ, 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 मैं कह रही हूँ, मुझे किसी के मकबरे पर महल खड़ा नहीं करना। मैं बेवकूफ़ थी। नहीं जानती थी कि मोहब्बत क्या होती है। नहीं ज़रूरत मुझे किसी दौलत की, कोठी, बंगला, कार, गाड़ी, कारोबार, ये सेठों ही को मुबारक हो। अगर हमारी किस्मत में ये दौलत हुई तो मिल जाएगी। नहीं तो क्या हम पाक परवरदिगार की लिखी हुई तकदीर से जंग कर सकते हैं? ये मोहब्बत का भूत तुम पर उस कलूटे से मुलाकात के बाद सवार हुआ है ना? हाँ, इसमें शक ही क्या है? वो चाहता है मुस्कान को, उसकी मोहब्बत उसके हवाले कर दो। दिल की गहराइयों से दुआएँ देगा। जिस लड़की की तुम्हारे नज़दीक कोई अहमियत नहीं, उसके लिए वो दुनिया माफ़िया से बढ़कर है। वो उसके लिए दौलत और पुरआसाइश ज़िंदगी ही नहीं, फ़रीहा जैसी लड़की को भी ठुकरा सकता है। हादी, यकीन करो, उसकी मोहब्बत में कोई खोट नहीं। एक बार भी तो नज़र भर कर उसने मेरे चेहरे को नहीं देखा। मैंने ऐसी अदाएँ दिखाई कि ज़ाहिद सद साला भी मुझ पर फ़रेफ्ता हो जाता, मगर उसे असर ही नहीं हुआ। जानती हो क्यों? क्योंकि वो अपनी मिशी का दीवाना है हादी। उसे अपनी मिशी लौटा दो और मुझे मेरा हादी दे दो प्लीज़। शट अप! हम्माद तब कर बोला। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि फरीहा इतनी अहमक निकलेगी। हम्माद, आज फैसला हो जाना चाहिए। तुम्हें फरी या दौलत में से एक का इंतखाब करना होगा। फरीहा इस ड्रामे के ड्रॉप सीन के लिए तैयार हो गई थी। मुस्कान को करीब से देखने पर उसे महसूस हुआ था कि उस जैसी नेक खसलत लड़की को कत्ल करके वो दोनों कभी भी चैन की ज़िंदगी बसर नहीं कर सकेंगे। फरी, क्या हो गया है तुम्हें? पता है आजकल आम इंसान की ज़िंदगी कितनी मुश्किल और दुश्वार गुज़ार है। ना तो उनके बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर सकते हैं और ना वो उन्हें ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात ही फ़राहम कर सकते हैं। ये तरसे शब-ओ-रोज़ और पूरी ना होने वाली ख़्वाहिशें ऐसी हसरत बनकर दिल में पैवस्त हो जाती हैं कि जो जुर्म की राह को कुशादा कर देती हैं। अगर कल हमने अपनी औलाद को मुजरिम बनाना है, तो इससे बेहतर नहीं कि आज हल्का-फुल्का जुर्म करके उनकी ज़िंदगी आसान बना दें।
वाह! अजीब मंतक है। बच्चों को जुर्म से बचाने के लिए खुद मुजरिम बन जाओ। और बाय द वे तुम किन बच्चों की बात कर रहे हो? हम 2 मियाँ-बीवी होंगे। जब तुम बच्चा पैदा करने की सलाहियत ही से महरूम हो, तो बच्चे कहाँ से आएँगे? फरीहा आज उसकी चिकनी-चुपड़ी बातों में नहीं आ रही थी। "फरी, क्या अपने हम्माद का साथ छोड़ दोगी?" वो जज़्बाती ब्लैकमेलिंग पर उतर आया था। "नहीं हम्माद, ये सवाल तो मेरा है। क्या तुम अपनी फरी को छोड़ दोगे? चंद टकों की खातिर? मुझे जवाब चाहिए। अगर तुम्हें दौलत, कोठी, कार और हाई सोसाइटी अज़ीज़ है, तो फरी तुम्हारे रास्ते से हट जाएगी। अगर फरी चाहिए, तो फिर इन सब को छोड़ना होगा। हम दोनों अल्हम्दुलिल्लाह तालीम याफ्ता हैं, जॉब कर लेंगे। बल्कि यकीन करो, मुस्कान हमें ज़रूर अच्छी जॉब ढूँढ कर दे देगी। वो बहुत अच्छी लड़की है। तुम्हारी ये बकवास बंद हो सकती है? वो कथा कलामी करते हुए दहाड़ा। हम्माद प्लीज़ मुझे मायूस ना करो। मैंने तहैया कर लिया है। तुम्हें दौलत या फरीहा में से एक का इंतखाब करना होगा और ये फैसला अभी और इसी वक़्त करना होगा। तुम इस वक़्त दिमागी तौर पर अपसेट हो, मैं बाद में बात करूँगा। हम्माद ने जान छुड़ाना चाही। अगर तुमने कोई जवाब दिए बगैर राब्ता मुनक़ता कर दिया, तो इसका मतलब यही होगा कि तुम्हें दौलत चाहिए और याद रखना इसके बाद फरी तुम्हारे लिए मर जाएगी। फरीहा आज उसे आज़माने पर तुल गई थी। फरी प्लीज़, बड़ी मुश्किल से मुझे अपने ख्वाबों की ताबीर पूरी होती नज़र आई है। तुम उसमें रोड़े अटकाने की कोशिश ना करो। उसने पूछा, क्या मैं तुम्हारा ख्वाब नहीं हूँ? क्यों नहीं हो? मगर ज़िंदगी खाली मोहब्बत के सहारे ही तो नहीं गुज़ारी जा सकती ना। मतलब तुम बाज़ नहीं आने वाले। फरीहा का लहज़ा दुःख से पुर था। वो झल्ला कर चिल्लाया, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? समझाओ ना। उसका लहज़ा भी बुलंद हो गया था। मुझे तुमसे इस बेवकूफ़ी की तवक्को नहीं थी। देखो फरी, वो उसे नरमी से समझाने लगा, ये गरीबों का खून चूसने वाले सेठ किसी हमदर्दी के मुस्तहिक नहीं। ये वो आदमखोर दरिंदे हैं जो दिन-रात हम गरीबों का शिकार करके अपने बड़े पेट भरने में जुटे रहते हैं। उनके कभी ना भरने वाले शिकम तुम्हें तिजोरी और बैंक बैलेंस की सूरत में नज़र आएँगे। अगर हम उनमें से किसी खून आशाम दरिंदे को हलाक कर दें, तो वो जुर्म कैसे होगा? मेरी नज़र में ये नेकी है। मुझे फ़लसफ़ा नहीं, फ़ैसला सुनाओ, फ़री चाहिए या दौलत? फ़री प्लीज़, प्लीज़ अपनी सोच में वुसअत पैदा करो। वाह! इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डाँटे। वुसअत मैं पैदा करूँ, हाँ? गलत काम तुम कर रहे हो और कसूरवार मैं हूँ कि इस जुर्म पर आमादा नहीं हो रही। गासिबों से छीनना कोई जुर्म नहीं है। कौन गासिब? और मुस्कान या उसके खानदान ने तुम्हारा क्या गसब किया है हमाद? उनके लिए तुम ज़ालिम तुम हो। क्या कुछ कुर्बानी नहीं दी उस लड़की ने तुम्हारे लिए? यहाँ तक कि एक ऐसे बंदे की बीवी बनने के लिए भी तैयार हो गई, जो तुम्हारी नज़र में कराहियत आमेज़ और बदसूरत तरीन था। सिले में उसे क्या मिलेगा? दर्दनाक मौत, उसका बच्चा यतीम होगा और दौलत पर ऐश करेगा उसका कातिल। वाह जी वाह! इसके बावजूद वो गासिब और हम हैं मज़लूम, उनके मज़ालिम का शिकार। यही समझाना चाहते हैं मुझे आप? सच बताओ, तुम्हारे कान किसने भरे हैं? वो इत्मीनान से बोली, मेरे ज़मीर ने। अच्छा, कल इस मौज़ू पर तफ़सील से बात करेंगे। उसने वक़्ती तौर पर जान छुड़ाना चाही। गो मोहब्बत करने वाले सूदो ज़िया का नहीं सोचा करते और इसकी मिसाल पेश करने के लिए मेरे ज़हन में फिर उसी अहमक का नाम आता है जिसे तुम हबशी कहते हो। लेकिन फिर भी ढीठ बनकर मैं अगला 1 घंटा तुम्हारे फ़ैसले का इंतज़ार करूँगी। जवाब ना आने की सूरत में मैं यही समझूँगी कि तूने अपनी फरी पर दौलत को तरजीह दी है। ये कहते ही उसने राब्ता मुनक़ता कर दिया। हम्माद सर पकड़कर बैठ गया। वो फ़री को बहुत चाहता था, मगर दौलत को छोड़ना भी मुमकिन नहीं था। उसने दौलत के हसूल का बेदाग मंसूबा बनाया था। जब उसके पूरा होने का वक़्त करीब आया, वो सारी रुकावटें दूर हुईं, तो फ़रीहा की सूरत में नई रुकावट सामने आ गई। चाहत अपनी जगह, मगर उसके लिए वो अपना मुस्तक़बिल दाँव पर नहीं लगा सकता था। अपनी तमन्नाओं का ख़ून नहीं कर सकता था, अपनी हसरतों को बर्बाद होता नहीं देख सकता था। यूँ भी उसे उम्मीद थी कि फ़रीहा की नाराज़गी मुस्तकिल बुनियादों पर कायम नहीं रह सकती थी। ज़्यादा से ज़्यादा वो चंद ही माह खफ़ा रहती। दौलत की रेल-पेल और पुरआसाइश ज़िंदगी की चकाचौंध उसे ज़रूर हमाद के पास वापस ले आती। इस सोच ने उसके अंदेशों को इत्मीनान में बदल दिया था। मोबाइल ऑफ़ करके वो आराम करने लेट गया। सबसे पहले उसे अपने ख्वाबों को हकीकत में ढालना था, उसके बाद वो अपनी मोहब्बत को भी राज़ी कर लेता।